Thank you guys. So this side Siddharth Jain, Assistant Operation Manager for Delhi Institute of Digital Marketing. I welcome you all guys to this live webinar on e-commerce business conducted by Delhi Institute of Digital Marketing. Today, one of the expert jury of digital marketing, Mr. Amit Kharbanda, is going to take this session. We will be starting the session within few minutes, guys. Let everyone get connected. Thank you. Alright guys, so let's start today's session. I hope my voice is audible to each and every candidate. First of all, I would like to welcome you all in this live webinar on e-commerce business conducted by Delhi Institute of Digital Marketing. So guys, those who has recently joined in the session, please confirm on the chat box. I hope मेरी voice आप सब तक आ रही है guys. Now is it audible to you? Ronnie, Tanisha? All right. So everyone who has joined just a 2 minutes back, please confirm. I hope मेरी voice आप सबको clear है. Thank you guys. Thanks a lot. Yeah. So let's start the session. So as you know very well, आज का सेशन हमारा ई कॉमर्स बिजनेस पर है दैट इज कंडक्टेड बाय दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. So before moving ahead guys, let's see few of the guidelines to attend this webinar. As you can see on my screen, kindly make sure that this complete webinar will be in recorded mode. All participants mic will be auto mute from our side. We will arrange a separate query round at the end of the session. You may note down your query at your end or drop it in the chat box here. At the end of the session guys, you will be provided a feedback link in the chat box. We request you to fill that. Delhi Institute of Digital Marketing is going to give a special surprise guys. Yes, there will be a special surprise for all of you who are going to attend this session till the end. So please stay tuned. In case of any further query after the session, you may reach to us, to our consultants, or drop your query in the feedback form. So guys, आज के इस सेशन में हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? What we are going to learn? Let's see on that, right? So आज के सेशन में हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है ई कॉमर्स बिजनेस. नाउ व्हाट एग्जैक्टली ई कॉमर्स बिजनेस इज, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. Before we start it, I would also like to throw some light on the expert jury introduction of this session, Mr. Amit Kharbanda, e-commerce specialist. He has been in e-commerce sector over 4 years now. He has been selling at Flipkart, Amazon, and other e-commerce portals as well. He has sold more than 1 lakh products online. He has an annual turnover above 10 millions. Right guys, he has been in the digital marketing industry for 6 years. He can help in making your business a brand in e-commerce. Moreover, he will be guiding you from the scratch, like opening an account to processing the orders. He will also guide us about the legal and accounting part as well. So overall इस सेशन में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने बिजनेस को फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करके टिल द ऑर्डर प्रोसेसिंग तक, लीगल एंड अकाउंटिंग पार्ट तक कैसे लेकर जाएंगे, ये हमारे एक्सपर्ट जूरी मिस्टर अमित खरबंदा यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करेंगे आज के इस सेशन में. Moreover guys, 2-3 things or which I would like to add on, that is in today's webinar Mr. Amit is also going to share the complete guidance on how we can open our own virtual shop or online store on giant e-commerce platforms like Amazon and Flipkart.
As you know, guys, during this pandemic, where we have less ways to earn, to sustain in the market, to retain our customers, to get the job, Delhi Institute of Digital Marketing opens doors of opportunities to all to start some part-time work through which we can make our time productive. Yes, guys, in this section, you will also be like, if you are a job seeker, if you are a startup owner, if you are a freelancer, if you are a homemaker. Yeah, मेरी वॉइस आप तक क्लियर नहीं आ रही guys? Just a moment, let me check. Now is it audible? Please confirm, guys. Now is it audible to you? Just a moment, guys. Sorry for the interruption. Just a moment. Now am I audible? Please confirm on the chat box. All right. Everyone, please confirm on the chat box. I hope my voice is audible to all of you now. Yeah, fine, fine. Thank you. Yes, guys, I'm gonna repeat it again. I hope शायद वॉइस ऑडिबल ना होने की वजह से कुछ मिस आउट हो गया हो, तो आई एम गोना रिपीट इट. Okay, so as I'm telling you guys, like in this session, if you are a job seeker, if you are a startup owner, if you are a freelancer, if you are a homemaker, or else if you are a retired personnel as well. So basically in this session, Mr. Amit Kharbanda is going to teach us how we can become financially independent and we can support to our family as well as our country's economy. So without spending much time more, I would like to invite a expert jury, Mr. Amit Kharbanda, to start with the session. Over to you, Amit sir. Hello. Hello. Hi. Good afternoon, guys. Yes, sir. You are audible. आपको मेरी आवाज आ रही है? Hello. Okay. Thank you. First of all, a big thank you to all of you guys जो आप लोग एक वेबिनार ज्वाइन किया आपने. हेलो, एक सेकंड बस, अब वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है. एक सेकंड. यस यस, ओके ना, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस, आपने कोर्स ज्वाइन, ये वेबिनार ज्वाइन किया है. बस मुझे आपका 1 से 1.5 घंटा चाहिए. उसमें मैं आपको आज ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जो आज की डेट में कोविड के टाइम पे आप लोगों के लिए एक नया बिजनेस, एक नई लाइन और एक नया रास्ता आप लोगों के लिए निकल सकता है. शायद क्या कहते हैं कि मेरे इस वेबिनार से आप लोगों को आगे जाके कुछ फायदा होगा. ठीक है, उसके लिए मेरे को बस आप लोगों से एक ही चीज चाहिए, 1 घंटा दे दो बस मुझे. 1 घंटा मेरी बात सुन लो. 1 घंटे के बाद क्या कहते हैं कि हम लोग आपके क्या कहते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका मैं आपको जवाब दूंगा. ठीक है, इस 1 घंटे में क्या कहते हैं कि आप लोगों की मैं इस तरह माइंड को बताऊंगा, आपको नए रास्ते, नए तरीके, नया वे दिखाने वाला हूं जो आपको आगे जाके हेल्प करेगा. ठीक है, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शेयरिंग अप माय स्क्रीन. एक बार आप लोग चेक कर लो मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है. गाइस आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पे. ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टॉपिक ई कॉमर्स. व्हाट इज ई कॉमर्स? इस कोर्स में, इस वेबिनार में आप लोगों को मैं ये चीज समझाने वाला हूं कि हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट, Amazon एंड स्नैपडील. तो ये 3 पोर्टल ऐसे होने वाले हैं जिन पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस पे आप लोग बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहले ये चीज देखो, ये flipkart.com है. ठीक है, अब यहाँ पे सपोज
करो, ये हम देखते हैं सेफ्टी हेलमेट। ओके, यहाँ पर ये हेलमेट है। अब आप लोग कुछ भी फ्लिपकार्ट से कभी भी ऑर्डर करते हो, परचेज करते हो, फ्लिपकार्ट से करते हो, अमेजोन से करते हो, किसी भी ई कॉमर्स के पोर्टल से करते हो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट लॉग इन करते हो, जो को प्रोडक्ट समझ आता है उस पर क्लिक करते हो और यहाँ सीधा बाय नाउ कर देते हो, दैट्स इट। इसके अलावा आप लोग और कुछ नहीं देखते। हाँ, प्राइसेस, रिव्यूज, रेटिंग तो सब लोग देख रहे होते हैं, बट यहीं तक हम लोग उसको बाय नाउ करते हैं और हमारे घर वो चीज डिलीवर हो जाती है। बट कभी आप लोगों ने सोचा है कि फ्लिपकार्ट पे कौन बंदा इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा है? who all are listing the products? ये वाला क्या कहते हैं, प्रोडक्ट किसने लिस्ट किया है? क्या ये फ्लिपकार्ट लिस्ट कर रहा है या कोई बंदा लिस्ट कर रहा है? सबसे मेन क्वेश्चन ये है। तो आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि जो ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हुआ है, ये जो फोटो यहाँ पे डली है, ये एक फ्लिपकार्ट ने नहीं डाली, ये फ्लिपकार्ट नहीं बेच रहा, ये बेचता है ये सेलर। ये सेलर आपके मेरी तरह, आपके मेरे जैसा ही है, इसने भी अपना एक अकाउंट बनाया फ्लिपकार्ट पे और ये बंदा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब इसमें हम लोग ये चीज देखें, ये फेस शील्ड देख ले, या फिर क्या कहते हैं कि आप देखो नीचे ये थर्मामीटर देख लो, ये थर्मामीटर, यहाँ भी इसका सेलर कौन है? ये देखो, नाइस कंफर्ट, दिस गाय इज सेलिंग फ्रॉम 2 years ऑन फ्लिपकार्ट। तो आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है। आपकी मेरी तरह हर एक बंदा फ्लिपकार्ट पे अपना एक अकाउंट बनाता है, विच इज कॉल्ड अ सेलर अकाउंट। ओके, सेलर अकाउंट बनाने के बाद वी लिस्ट आवर प्रोडक्ट्स ऑन फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट की सेलर ऐप। देन जो भी हमने लिस्टेड प्रोडक्ट है हमारे, कस्टमर उस प्रोडक्ट को देखता है, कस्टमर सीज दैट प्रोडक्ट एंड देन दे ऑर्डर द प्रोडक्ट। फ्लिपकार्ट का यहाँ पे रोल क्या है? फ्लिपकार्ट का पिकअप का बंदा आपके वेयर हाउस से पिकअप करेगा ऑर्डर और कस्टमर को डिलीवर करेगा। ऑर्डर को पैक करना, जो आपके घर ऑर्डर आता है, जो ऑर्डर पैक्ड हुआ आता है, ऑर्डर के ऊपर जो लेबल लगा होता है, ऑर्डर के अंदर जो बबल थर्मोकॉल होती है, वो सब एक सेलर करता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर आएगा, हम उसको पैक करेंगे, हम उसके ऊपर लेबल लगाएंगे, फ्लिपकार्ट का बंदा हमारे यहाँ से पिकअप करेगा, अपने वेयर हाउस में डालेगा और जाके कस्टमर को डिलीवर करेगा, बस। तो फ्लिपकार्ट एक मीडिएटर है बीच में। फ्लिपकार्ट का मीडिएटर का सीन क्या है कि फ्लिपकार्ट अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे आप और हम लोग फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये चीज सिखाऊंगा आगे जाके, जो हम आपकी कोर्स ज्वाइन करते हो, कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट हम लोग लिस्ट करते कैसे, लिस्ट कैसे करते हैं, उस ऑर्डर को प्रोसेस कैसे किया जाता है, ऑर्डर को पैक कैसे किया जाता है और किस तरह आपके पास पेमेंट्स आते हैं। ओके, अब सबसे पहली चीज, भैया कोविड हो रखा है, आप सबकी जिनका भी ऑफलाइन बिजनेस है, शॉप्स क्लोज्ड है, ठीक है। आपके ऑफिसेस से आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, बहुतों की जॉब्स चली गई हैं, बहुत आप में से ऐसे होंगे जिनके कोई ना कोई रिलेटिव या कोई ना कोई, क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स ही कह लो, आज की डेट में जॉबलेस हो सकते हैं या लेस सैलरी पे वर्क कर रहे हैं, या अगर शॉप है, दुकान है, फैक्ट्री है, वो कोविड की वजह से बंद हो गई। पर आप लोगों को एक चीज बताऊं, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं आज की डेट में ऑर्डर प्रोसेस कर रहा हूँ, आज की डेट में ऑर्डर पैक भी कर रहा हूँ मेरे वेयर हाउस में, मेरा तो सब कुछ चल रहा है, मेरा बिजनेस बंद नहीं हुआ, बल्कि मेरा बिजनेस कोरोना की वजह से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोगों की शॉप्स बंद है, आप लोगों की शॉप्स बंद है, तो लोगों को तो ऑर्डर करना ही है कहीं ना कहीं से, तो हर कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर, अब ऑनलाइन ऑर्डर करेगा तो मेरे जैसे लोग जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए आप लोगों के लिए ये कोर्स, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कोरोना के टाइम पे ये आगे जाके भी लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है, लोग इतना डर गए, इतनी डेथ्स हो गई कि लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया। एवरीवन वांट्स, क्या कहते हैं, कि घर पे सामान डिलीवर हो जाए।
घर पे सामान डिलीवर होगा कैसे सर? जब तक क्या कहते हो प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट नहीं होगा। ऑनलाइन लिस्ट कौन करेगा? आप और मैं जैसे लोग लिस्ट करेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट तो ऑनलाइन लिस्ट नहीं करता। फ्लिपकार्ट हम जैसे लोगों को एक पैनल देता है जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों को सामान चाहिए सस्ते रेट पे ऑनलाइन से। तो अगर मैं आप में से कोई मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर कोई भी है, तो सस्ते रेट पे प्रोडक्ट लिस्ट करो, उसको बेचो, ऑर्डर डिलीवर होगा, आपके अकाउंट में पेमेंट आए। कैसे? ये देखो, अब ये प्रोडक्ट थर्मामीटर है, जो भी इसका मैन्युफैक्चरर है उसको ये प्रोडक्ट 50 रुपए से ऊपर का नहीं पड़ रहा, और वो बेच कितने का रहा है? 260 रुपीज का, प्लस शिपिंग भी है नीचे आती है। तो 300 रुपए का वो बेच रहा है 50 रुपए का प्रोडक्ट। सोचो कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करने से। अब यही इसकी अगर एक ऑफलाइन दुकान होती किसी मार्केट में, मार्केट पूरी बंद हो रखी है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? इसका बिजनेस नहीं चल रहा। वही चीज इसने ऑनलाइन लिस्ट करी हुई है तो इसका बिजनेस बूम पे चल रहा है। इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं आज के डेट में, जो लोग ऑनलाइन लिस्ट कर रहे हैं सबकी चांदी हो रखी है, बट ऑफलाइन वालों के लिए सबको दिक्कत है। तो इसलिए ये ई कॉमर्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हम लोग क्या सिखाएंगे? सबसे पहली चीज, अब इस पे आते, सबसे पहली चीज आपको मैं सिखाऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं। हाउ यू कैन मेक अ सेलर अकाउंट ऑन फ्लिपकार्ट, ठीक है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट यू नीड? डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी हो जाएगी, आपका फ्लिपकार्ट पे अकाउंट एक्टिवेट होएगा। यहाँ तक सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो, जितने भी आप लोग आओगे, कोर्स ज्वाइन करोगे या आगे जाके इस पे कभी भी सेलिंग करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोर्स ज्वाइन किया तो ही आपको आएगा, आप खुद भी कर सकते हो, बट एक एक्सपर्ट एडवाइस की प्रोडक्ट क्या चाहिए, सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे। क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से फ्लिपकार्ट बेच रहा हूँ, मैंने फ्लिपकार्ट पे हर फेज देखा। ऐसा फेज भी देखा जब क्या कहते हैं 1 महीने तक ऑर्डर नहीं आए, और ऐसा फेज भी देखा जब एक दिन में 300-400 ऑर्डर्स भी आए, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर, ये ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि आपको कुछ नेगेटिव वे में लेके जा रहा है। ये कोर्स एक ट्रूली बेनिफिशियल कोर्स आपके लिए होने वाला है, जो आपका बिजनेस आपको एक नया रास्ता दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक सेलर अकाउंट बनाना सिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो आपको बताई जाएगी। अकाउंट बनाने के बाद फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करो? हाउ विल यू लिस्ट द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है? फोटोग्राफी। ये फोटोज कैसे आई, ये फोटोज कैसे खींची जाती हैं, ये फोटोज का वाइट बैकग्राउंड होता है, इसका क्या क्या, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो सारी चीज क्या कहते हैं कि आप लोगों को हम लोग सिखाएंगे कि किस तरह आप लोग क्या कहते हैं। पहली बात, ये फोटोग्राफी चूज करो, ठीक है। फोटोग्राफी किस तरह अपनी फोटोज को अट्रैक्टिव बनाओगे ताकि लोगों को समझ आ सके। देन अपने प्रोडक्ट का टाइटल से लेके, टाइटल किस तरह बनाना है, उस पर क्या क्या आपको फीचर्स देने हैं, हाईलाइट्स किस तरह देने हैं। मैं यहाँ पे आपको चीज दिखाता हूँ। सपोज करो मैं इनकी टी शर्ट दिखाता हूँ। ये टी शर्ट्स का यहाँ पे फोटोज किस तरह आनी है, किस तरह मॉडल्स आपको, मतलब फोटोग्राफ्स की डिजाइन करवानी है, ये टाइटल किस तरह आपको बनाना है, और यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स वगैरह किस तरह आपको ऐड करने हैं, डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखना है, आपके प्रोडक्ट की जो आपके को लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब किस तरह देना है। ये सारी चीज आपको सबसे पहले बेसिक सिखाई जाएगी कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करो। लिस्ट कुछ भी कर सकते हो आप बच्चों के टॉयज से लेके कोई भी टॉयज आप लिस्ट कर सकते हो, बच्चों का कोई भी बुक्स आप लिस्ट कर सकते हो, कोई भी होम एंड फर्नीचर का आइटम, पेंटिंग से लेके बेडशीट तक लिस्ट कर सकते हो आप। कुछ नहीं छुपा फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पे हर एक चीज बिक रही है, बड़े बड़े अप्लायंसेस तक बिक रहे हैं, आपकी वॉशिंग मशीन तक बिक रही है आपकी। वो कैसी चीजें हो रही है वॉशिंग मशीन में? आप ये देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, ये हाइलाइट्स कैसे आ रहे हैं ये तक बताऊंगा आप लोगों को मैं। ये वीडियो कैसे डलती है यहाँ पे, ये चीज सिखाई जाएगी। और सबसे मेन चीज, जब आप ये बेसिक चीजें सीख जाओगे, आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि क्या
प्राइस रखोगे आप फ्लिपकार्ट अमेज़न, ताकि आपकी जेब में कितना प्रॉफिट आ रहा है, कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, फ्लिपकार्ट पे क्या फ्लिपकार्ट की कमीशन है, क्या फ्लिपकार्ट के चार्जेस है, क्या शिपिंग फीस है, कितने टाइम के बाद फ्लिपकार्ट से आपको पेमेंट आती है, ये सारी चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे। बहुत लोग ऐसे क्या जो भी हैंड रेस कर रहा है, गाइस एक बार मुझे क्या कहते हैं कि खत्म करने दो, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस है आप मुझे वो चीज पूछ सकते हो, ठीक है? क्लियर है? एक सेकेंड चेतन, जस्ट गिव मी क्या कहते हैं कि ये टॉपिक खत्म हुए उसके बाद क्या कहते हैं कि आपको मैं पूरी चीजें बता दूंगा कि क्या क्या जो आपके क्वेश्चंस क्वेरी वगैरह है, ठीक है? थैंक यू। ओके ओके, फ्लिपकार्ट पे मेन बात यही आती है कि प्राइस क्या रखें। आप लोग ये मत सोच के बैठना कि भैया आपने अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया और 150 रुपए का फ्लिपकार्ट पे बेच दिया तो 50 रुपए के प्रॉफिट आ गए, ऐसा नहीं होता। एक सेकंड गाइस, गाइस ये बीच में कोई ना कोई पंगे ले रहा है, इसको जरा गाइस एक सेकंड। एक सेकेंड ओके, आई गेस कोई ना बीच में दिक्कत आ गई थी, कोई ना कोई पंगे ले रहा था, तो मैं वापस शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो मेन चीज आपको ये बताऊंगा यहाँ पे मैं कि क्या प्राइस रखना है। ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप 100 रुपीज से सामान सेल परचेज कर रहे हो एंड 150 का आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो 50 रुपीज आपकी जेब में आ रहा है, नहीं, आपका बल्कि लॉस हो रहा है उस चीज में, ठीक है? तो आप लोगों को ये भी सिखाया जाएगा कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे क्या प्राइस रखना है, क्या क्या कहते हैं कि फ्लिपकार्ट की क्या कमीशन होती है, क्या शिपिंग फीस है, क्या आप लोगों की कॉस्ट है, आप लोगों ने अपना इलेक्ट्रिसिटी है, आपका रेंट है, आपके लड़के की जो क्या कहते हैं कि पैकिंग बॉयज होते हैं उनकी कॉस्टिंग, पैकिंग कॉस्ट, ये सारा भी तो जोड़ना है हमने। कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट टूटा वापस भेज दिया, तो इस सब की कॉस्टिंग भी तो जुड़नी है। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे कि आप लोगों को क्या प्राइस सोच के क्या कहते हैं कि उस पर लिस्ट करना, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट चीज आपको क्या बताई जाएगी कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जब भी हम कुछ लिस्ट करते हैं उसके बाद जाके क्या कहते हैं कि आपकी लीगल टर्म्स क्या है। लीगल टर्म्स में सबसे पहली चीज आती है आपका ट्रेडमार्क। मैं आपको ये सिखाऊंगा क्या कहते हैं कि अपना जो भी नाम आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सोच रहे हो बनाने का, उसका ट्रेडमार्क कैसे लेना है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट पे कोई भी वायलेट कर सकता है, उसको मैपिंग कर सकता है। मैपिंग का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट सपोज करो, ये देखो आपको चीज दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी चीज। अभी ये प्रोडक्ट है, ठीक है? ये प्रोडक्ट एपेक्स ब्रांड का प्रोडक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो और लोग इसमें घुस गए, कितने लोग इसमें घुस गए। तो ये सारा क्या चीज है, आपका अगर ब्रांड क्या कहते हैं कि ट्रेडमार्क होता तो कोई आपके इतने अच्छे रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट में घुस के आपका बिजनेस खराब नहीं करता। तो क्या अगर ये एपेक्स वाले ने अपना ट्रेडमार्क ले लिया होता तो यहाँ पर और लोग आगे उसकी वहां नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको मैं ये चीज सिखाऊंगा कि सबसे पहले लीगल टर्म्स में, लीगल वे में अपने आप को कैसे सेव करना है आपको, ताकि कोई बंदा हमारी मेहनत पे आके अपना ना खाए, हमारी मेहनत पे पानी ना फेरे, प्राइस कम करके हमारे मेहनत जो जो हमने इतने अच्छे प्रोडक्ट सेल किए हैं उसकी रेटिंग रिव्यूज ना खराब करे, ठीक है? लीगल टर्म्स में नेक्स्ट चीज आपको मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा वो है जीएसटी।
जीएसटी नंबर के बिना हम लोग ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखो। अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन सेलिंग करनी है तो आपको एक जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जीएसटी नंबर लेना बहुत आसान है, 500 रुपए में नंबर मिल जाता है जीएसटी, जो क्या कहते हैं कि आपके लोग होते हैं कंपनी, जीएसटी नंबर आपको क्या कहते हैं 500 रुपए में दिलवा देंगे, ठीक है, वो चीज बहुत इजी प्रोसेस है। बट हर महीने गवर्नमेंट जीएसटी की आपसे रिटर्न मांगती है कि आपने जितने प्रोडक्ट सेल किए हैं उस पे इनवॉइस पे जीएसटी होता है, ठीक है, तो वो इनवॉइस को हर महीने हमको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हमको उस चीज का फाइन वगैरह पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज में आपको पूरी क्या कहते हैं कि डिटेल में बताया जाएगा कि क्या जीएसटी आपको किस तरह के सीए को आपको पकड़ना है, किस तरह आपको रिटर्न फाइल करनी है, ताकि आगे जाके आपके ऊपर कोई लीगल केस ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज का एक्सप्लेनेशन भी पूरी दी जाएगी। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग अकाउंट कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, क्या प्रोडक्ट लिस्ट करना है, उसका प्राइस क्या रखना है, लीगल टर्म्स में किस तरह हेल्प करनी है, ये सब करने के बाद जब आपके पास आएगा फाइनल जाके एक ऑर्डर आया जी, अब ऑर्डर को प्रोसेस किस तरह करना है, ऑर्डर को पैक किस तरह करना है, ऑर्डर के ऊपर लेबल क्या लगाना है, क्या लेबल नहीं लगाना, कितने टाइम में ऑर्डर को प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब आपका ऑर्डर जाके डिलीवर होता है, देन आपके पास पेमेंट किस तरह है, पेमेंट कितने दिन के बाद आएगी, उसी टाइम पेमेंट आएगी या बाद में पेमेंट आएगी, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं और एक और बात बताऊंगा आपको मैं, यहाँ पे जब हमने बोला कि अपना अकाउंट कैसे बनाना है, हाउ विल यू लिस्ट अ प्रोडक्ट, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक और चीज बताऊंगा कि प्रोडक्ट चूज क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी चीज का मैन्युफैक्चर नहीं है, जॉब करते थे, मेरे कहने पे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अकाउंट बना रहे हो, आप लोगों को यही नहीं पता कि बेचना क्या है, तो आप लोगों को मैं ये चीज बताऊंगी कि क्या क्या चीज आप बेच सकते हो, क्या चीज आप नहीं बेच सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बोला कि सर मैंने क्या कहते हैं कि मेंस शर्ट बेचूंगा, ठीक है, नहीं आपने कहा कि सर मैं वुमेन शर्ट बेचूंगा, कि वुमेन शर्ट में क्या कहते हैं कि आपके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं, मैंने कहा ठीक है वुमेन शर्ट बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों ने खुद के मैन्युफैक्चर नहीं हो, आपने किसी से गांधीनगर मार्केट में गए, वहां से वुमेन्स की टी शर्ट्स परचेज करी, ठीक है, आपने क्या कहते हैं कि उसको ऑनलाइन लिस्ट कर दिया, बेचने लग गए। अब आपको एक बात बताता हूँ, यहीं पे यहाँ पर जो बंदे अगर किसी होलसेलर से जाके परचेज करके वुमेन शर्ट बेचेंगे ना, वो बंदे हमेशा हमेशा क्या कहते हैं लॉस में जाएंगे। क्यों भाई, वुमेन जो है ना कभी भी एक साइज में कभी फिट सेटिस्फाई नहीं होते, उनको कभी भी साइज छोटा बड़ा आता है। छोटे बड़े साइज में क्या है, आपके प्रोडक्ट पे रिप्लेसमेंट आएंगे, रिप्लेसमेंट जितनी ज्यादा होंगी उतने ज्यादा आपके क्या कहते हैं कोरियर की कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो कोरियर कॉस्ट इंक्रीज जब होएगी ज्यादा, आपका ऑब्वियसली क्या कहते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए। प्रॉफिट मार्जिन कम, अगर एक प्रोडक्ट में आपको एक रिप्लेसमेंट आ गई ना, आप कम से कम -80 से 100 रुपए लॉस में जाते हो अगर रिप्लेसमेंट आती है। इसीलिए वुमेन शर्ट या कपड़ों में वही बंदा बेचे जो बंदा उसका मैन्युफैक्चरर है, उससे क्या है उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ती पड़ती है, लीज पड़ती है, तो उसका प्रोडक्ट की जो मार्जिन वो अच्छा लगता है, तो वो इस रिप्लेसमेंट से बच जाता है। ओके, तो पहला केस ये। दूसरा केस आपने बोला कि सर क्या कहते हैं कि हम हमारा खुद का बिजनेस है, हम लोग क्या कहते हैं इन्वर्टर की बैटरी बेचते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, इन्वर्टर की बैटरी बेचो, इन्वर्टर गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इन्वर्टर बेचो। अब इन्वर्टर में क्या, बैटरी में क्या दिक्कत है, इन्वर्टर की बैटरी होती है एक बल्कि आइटम, मतलब उसका कम से कम 15 kg का वेट, 10 से 15 किलो का वेट होता है। 10 से 15 किलो वेट नॉर्मल बंदा नहीं डिलीवर करता, उसमें सबसे ज्यादा टूटने का डर रहता है, रिप्लेसमेंट का डर रहता है। तो इन्वर्टर बैटरी भी वही बंदा करेगा जो बंदा क्या कहते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो किस तरह का प्रोडक्ट आपको क्या कहते हैं कि सर्च करना है, किस तरह का प्रोडक्ट आपको चूज करना है, तो वो चीज आपको क्या कहते हैं कि डिसाइड करनी है, वो चीज आपको मैं समझाऊंगा। और क्या किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में आपको जाना है वो चीज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस, मेरे पास ऐसे टूल्स भी हैं जो क्या कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को
एक सेकेंड, मेरे पास ऐसे टूल्स भी हैं जो क्या कहते हैं कि आपको बताएंगे कि क्या प्रोडक्ट बेचना है, क्या प्रोडक्ट डिमांड में है, गर्मियों में क्या प्रोडक्ट डिमांड में रहेगा, सर्दियों में क्या रहेगा, बारिश में क्या रहेगा, कौन से स्टेट से किस तरह के ऑर्डर्स आते हैं। अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ आज मैं, ठीक है। इंडिया में ना सबसे ज्यादा ऑर्डर्स, मोस्टली ऑर्डर्स साउथ से आते हैं। साउथ के लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन से परचेजिंग कर रहे हैं। मेरे पास 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, अराउंड 60 to 70% आई एम गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम साउथ। ओके, तो आई गाइड यू, क्या कहते हैं कि किस तरह आप लोग कौन सी स्टेट्स पर टारगेट करोगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप लोग डालोगे ताकि आपको बेटर मार्जिन हो, बेटर रिस्पॉन्स हो। फ्लिपकार्ट में एक और चीज भी है, ये देखो, रिप्लेसमेंट पॉलिसी। कई 7 डेज की रिप्लेसमेंट देते हैं, कई फ्लिपकार्ट 10 डेज की देते हैं। मेरे पास ऐसा डेटाबेस है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, जिसमें रिटर्न्स एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आपको मैं वो सजेशन भी दे सकता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट बेच लो, इसमें रिटर्न्स ही नहीं है। तो वो उसमें क्या, जिसमें रिटर्न्स नहीं होंगे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। ओके ओके, आई गेस आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी तक कोई पॉइंट किसी को? हेलो, ओके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। अब मैं आपको क्या कहते हैं कि फ्लिपकार्ट अमेजोन का पैनल दिखाता हूँ कि फ्लिपकार्ट अमेजोन का बैकएंड पैनल क्या है, ठीक है। ओके, हिरेन, आपका ये पॉइंट है कि मेरा सेलर अकाउंट बताओ कितनी सेल है। वेट अ सेकंड, आपको मैं अपना सेलर अकाउंट दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। मैं भाई 4 साल से बेच रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या चीज बेचनी, क्या चीज नहीं बेचनी। ओके, दिस इज माई स्क्रीन, प्लीज चेक इट। लास्ट 90 डेज की सेल देख लो मेरी, लास्ट 90 डेज के मेरे यूनिट्स देख लो। ये रेटिंग है, ये कस्टमर रिटर्न। तो जो भी ये बता रहा हूँ ना, मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी सेल है। ओके, तो मैं आपको जो भी चीज बता रहा हूँ, ये जेन्युइन चीज बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए फायदे के लिए बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि इसमें क्या है, एक नया रास्ता दिखा रहा हूँ लोगों को। अब आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन का पैनल दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके, ये देखो, इस तरह फ्लिपकार्ट अमेजोन का ये सेलर पैनल होता है। ये मेरे किसी क्या कहते हैं, मैंने डमी अकाउंट बना रखा है ये उस चीज के लिए। अब देखो, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन का सेलर पैनल है। यहाँ पे ये आपका लिस्टिंग पैनल होता है। जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, जो भी फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, सारे यहाँ पर आते हैं। अब सपोज करो ये प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट पे ये प्रोडक्ट इस तरह का दिखेगा, इस तरह दिखेगा। और इसका बैकएंड पैनल क्या होगा, बैकएंड पैनल इसका ये होगा। यहाँ से हम लिस्टिंग्स को एक्टिवेट करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, उसका क्या एमआरपी डालना है, क्या सेलिंग प्राइस डालना है, कितना स्टॉक पड़ा है, क्या डिलीवरी चार्जेस हमको लेने हैं, ये सारी चीजें हम लोग खुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं गाइस। ये मत एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने अगर कोई, सपोज करो, एक आपको एक और फ्लिपकार्ट का फैक्ट बताता हूँ मैं, जिस तरह मैंने एपेक्स प्लेंटर सर्च किया था, इसका प्राइस 199 यहाँ पर डला हुआ है सेलिंग प्राइस, और 185 यहाँ प्राइस है। तो फ्लिपकार्ट ने आपको दिखाया 7% ऑफ दे रहा है। ये फ्लिपकार्ट ऑफ नहीं देता, ये बात ध्यान रखना। ऑफ क्या देता है, सेलर खुद ऑफ दे रहा होता है। सेलर खुद अपना एमआरपी खुद लिस्ट डालता है, सेलिंग प्राइस अपना खुद करता है। तो ये मत सोच के बैठना कि फ्लिपकार्ट आपको ऑफ देता है।
फ्लिपकार्ट आपको कभी ऑफ नहीं देता, ये जो भी कर रहा है ये फ्लिपकार्ट पे सेल करने वाले बंदे ही करते हैं, ठीक है। तो हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि एमआरपी क्या डालनी है और सेलिंग प्राइस क्या डालनी है, बात ध्यान रखना, ठीक है। और फ्लिपकार्ट पे कोई भी हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी हमारे ऑर्डर्स आते हैं सारे यहाँ से आते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे ऑर्डर्स होंगे सब यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम उसको प्रोसेस करते हैं और हैंड ओवर में देते हैं। जितने भी हमारे लास्ट 30 डेज के ऑर्डर सारे यहाँ पर प्रोसेस हो रहे हैं। अब ये भी जो भी जितने भी ऑर्डर्स गए हैं सारे प्रोसेस यहाँ से हो रहे हैं, ओके। फ्लिपकार्ट पे जो भी पेमेंट्स आती हैं, पेमेंट सारी हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि किस तरह की पेमेंट्स आई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे किया जाता है। फ्लिपकार्ट पे क्या कहते हैं कि आपका पेमेंट्स किस तरह आएंगी, कौन से ऑर्डर पे किस तरह की पेमेंट आएगी, आपको ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है। आपको फ्लिपकार्ट पे ये देखो, फ्लिपकार्ट आपको एक और चीज सिखाई जाएगी बड़ी। फ्लिपकार्ट अमेजोन में सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने फ्लिपकार्ट पे सपोज करो डाला शूज, फ्लिपकार्ट में शूज आ गए। अब ये चीज देखो, टॉप पे ये दोनों एड्स दिख रही हैं, ये दोनों एड्स भी हम लोग आपको चलाना सिखाएंगे। फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजमेंट किस तरह होती है, किस तरह आप लोग अपना न्यूली लिस्टेड प्रोडक्ट एकदम टॉप पे या सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे ले आओगे। क्योंकि जो भी ये सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है ये सारे हाईली रेटेड प्रोडक्ट है, इन पे रेटिंग रिव्यूज बहुत ज्यादा है। पर जब एक सेलर नया लॉन्च करता है तब उसके प्रोडक्ट पे रिव्यूज रेटिंग्स नहीं होती है। उस केस में वो एड चलाता है और एड की हेल्प से वो आपका प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट टॉप पे लेके आता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी सिखाऊंगा कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप लोग एड्स भी किस तरह रन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अब सपोज करो ये प्रोडक्ट है, इस पे रेटिंग रिव्यूज है इसलिए टॉप पे आ रहा है, वहीं इसकी जगह ये वाला प्रोडक्ट था, इस पे रेटिंग रिव्यूज कम है, तब भी देखो ये 336 रेटिंग रिव्यूज है, इसमें 79,000, तब भी ये वाला प्रोडक्ट टॉप पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग इसमें फ्लिपकार्ट अमेजोन को पैसे दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं हमारा प्रोडक्ट टॉप पे लाने के, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता ये ऐड क्या चीज है। पर तो इससे फायदा क्या होता है कि फ्लिपकार्ट के टॉप पे फर्स्ट पेज पे हमारा प्रोडक्ट शो करता है। तो ये ऐड चलती कैसे है, ये ऐड होती क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि आपको सिखाएंगे। एक सेकंड, फ्लिपकार्ट पे अपनी ऐड कैसे चलानी है, किस तरह की आपको ऐड चलानी है फ्लिपकार्ट पे, ऐड चलाते कैसे, ऐड में कौन से कीवर्ड्स भरने हैं जो लोग सर्च कर सके, कौन से कीवर्ड्स भरने हैं जो लोग सर्च नहीं करते, जो हमारे नेगेटिव हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग आपको कैंपेन के अंदर सिखाते हैं। कैंपेन अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। आप लोग गूगल भी खोलोगे, गूगल पे भी आप शूज सर्च करोगे तो यहाँ पर ये एड्स चल रही हैं, ये गूगल पे एड्स चलती है। इसी तरह आपकी एड्स चलती है फ्लिपकार्ट पे, ये तो ये एड्स चलती कैसे है, किस तरह के लोगों को हमको ये ऐड दिखानी है, कौन से लोगों को ऐड नहीं दिखानी, तो ये सारा चीजें हम लोग फ्लिपकार्ट पे कैंपेन में चलाते हैं। ये देखिए कैंपेन में हम लोग यहाँ से कैंपेन में प्रोडक्ट सर्च करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट पे ऐड चलानी है, क्या बजटिंग होनी चाहिए, कितने पैसे मुझे उस पर लगाने हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा फ्लिपकार्ट पे ऐड किस तरह चलती है, ठीक है। ये आपका लिस्टिंग का पैनल, आपको नया प्रोडक्ट लिस्ट करना है, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ से करते हैं। लिस्टिंग कैसे करनी है, आपको क्या कहते हैं कि उसमें टाइटल किस तरह बनाना है, अपने प्रोडक्ट में किस तरह कीवर्ड्स डालने हैं। अब ये देखो इसके अंदर कोई बंदा ब्लेंडर सर्च करेगा, हैंड ब्लेंडर, कोई बटर मिल्क ब्लेंडर सर्च करेगा, कोई लस्सी ब्लेंडर सर्च करेगा, तो ये सारी चीजें आएंगी क्योंकि ये प्रोडक्ट टॉप पे दिख रहा है, इसमें कीवर्ड स्टफिंग होती है। तो वो सारी चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे, कीवर्ड स्टफ कैसे करते हैं, किस तरह क्या कहते हैं कि आपके टाइटल में कीवर्ड्स होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट के बैकएंड में कीवर्ड किस तरह होते हैं। ये देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके बैकएंड में कीवर्ड कैसे होंगे, ये सारी चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे कि प्रोडक्ट की टाइटल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है, फोटोज किस तरह की क्लिक करवानी है,
फोटोज का भी हमारे कोर्स के अंदर फोटोज का भी क्या कहते हैं कि एक छोटा सा पार्ट होएगा कि उसमें हम आपको फोटोज क्लिक करना सिखाएंगे कि फोटोज की बेसिक एडिटिंग कैसे करोगे, ताकि आप एक फोटो आपने ली, उस फोटो को क्या कहते हैं कि किस तरह आप फ्लिपकार्ट के जो भी नॉर्म्स है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या क्रिएटिव बैकग्राउंड होना चाहिए या लाइवली फोटोज होनी चाहिए, वो सारा मेंशन करते करते आपको किस तरह की फोटोज डिजाइन करनी है तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनानी है वो भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट का पैनल है। आपको एक एक टैग एक एक चीज ढंग से सिखाई जाएगी। आपके पास रिटर्न्स आ रहे, रिटर्न्स क्यों आ रहे, रिटर्न्स क्या रीजन से आ रहे, तो वो सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, देन रिपोर्ट्स, कितने प्रोडक्ट सेल किए आपने, कितने प्रोडक्ट्स आपके रिटर्न आए, क्या आपके जेब में अकाउंट पैसे आए हैं, ये सारी चीज आपको सिखाई जाएगी। ओके, ये फ्लिपकार्ट का आपका बेसिक सा पैनल होता है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप सब कुछ आप चेक कर सकते हो, क्या क्या कहते हैं कि आपके कितने ऑर्डर्स आए हैं, क्या रेटिंग्स है, क्या रिव्यूज है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने आपकी लिस्टिंग्स है, क्या पेमेंट्स आने वाली हैं, तो ये सारी चीजें आपकी हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका स्नैपडील का, इसी तरह आपका अमेजोन का पैनल भी होता है। आपको मैं स्नैपडील का पैनल का आइडिया दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। अनटिल नॉलेज आपका वेयरहाउस नहीं है, आप उस कंट्री के अमेजोन पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको एक बेसिक सी नॉलेज दे दी जाएगी, ये आपको मैं खुद दूंगा नॉलेज, कि अगर आपको अमेजोन इंडिया को छोड़ के अमेजोन वर्ल्ड वाइड भी करना है तो वो क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो वो चीज आपको सिखाई जाएगी। प्लस अमेजोन फ्लिपकार्ट आपको एक नया फीचर भी देता है कि आप लोगों के पास अगर खुद के पास क्या कहते हैं कि एक वेयरहाउस नहीं है या आपके घर में स्टोरेज नहीं है, तो आप अमेजोन के या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में स्टोरेज कर सकते हो। इसको बोलते हैं FBA, मतलब फुलफिल्ड बाय अमेजोन। इस केस में क्या होता है कि हम लोग अपना सामान अमेजोन के वेयर हाउस में रखते हैं। अमेजोन के वेयर हाउस में रखने का फायदा क्या होता है कि आपको अपना कोई स्टोर रखने की जगह, अपने कोई जगह लेने की जरूरत नहीं है। आपने अमेजोन के वेयर हाउस में रखा, वही कोई ऑर्डर आया तो अमेजोन ने उसको पैक किया, अमेजोन ने डिलीवर किया। आप लोगों को कोई पैकिंग की कोई टेंशन नहीं, कोई किसी का टेंशन नहीं। आपको बस क्या करना है, प्रोडक्ट प्रोक्योर किया और अमेजोन के वेयर हाउस में रखा। अपना कोई वेयर हाउस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आप फ्रीली बिना किसी टेंशन के आप लोग अमेजोन पे सेलिंग कर सकते हो। तो FB कैसे करते हैं, अमेजोन पे सामान कैसे रखवाते हैं, क्या प्रोसेस है, ये भी आपको सिखाया जाए, ताकि आपको आगे जाके खुद की स्टोरेज के लिए जगह ना लेनी पड़े। आपने सामान कहीं से परचेज किया या कहीं फैक्ट्री से उठाया और अमेजोन के वेयर हाउस में रख दिया, कोई ऑर्डर आया, आपने बस ऑर्डर प्रोसेस करना है, अमेजोन खुद ही पैक करेगा, खुद ही डिलीवर करेगा। अगर कोई टूटा सामान पहुंचता है तो अमेजोन उसकी गारंटी लेगा, आप लोगों को कोई टेंशन। तो ये FBA क्या होता है, ये से आपको सिखाया जाएगा। सेम चीज फ्लिपकार्ट ने भी शुरू कर दी है, FBF, फुलफिल्ड बाय फ्लिपकार्ट। सेम चीज हम लोग फ्लिपकार्ट के, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लिपकार्ट के 60-70% ऑर्डर्स साउथ इंडिया से आते हैं। ओके, तो साउथ इंडिया से अगर फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स जा रहे हैं, अगर मैं दिल्ली से भेज रहा हूँ तो उसको डिलीवर होने में 4 से 5 दिन लगेंगे। वहीं फ्लिपकार्ट ने ये चीज देखते हुए फ्लिपकार्ट ने कहा कि फ्लिपकार्ट अपना एक वेयर हाउस खोल के बैठा है साउथ इंडिया में। फ्लिपकार्ट ने कहा कि आप अपना सामान वहां डालो, जो चीज कस्टमर के पास 4-5 दिनों में पहुंच रही है वही चीज कस्टमर के पास 1 से 2 दिन में पहुंच जाएगी। तो इससे आपकी पेमेंट जल्दी, आपकी रीच ज्यादा, आपको ऑर्डर ज्यादा मिलेगा। तो फ्लिपकार्ट पे भी क्या कहते हैं कि हम लोग फ्लिपकार्ट FBF भी करते
करते हैं तो वो भी चीज आपको सिखाई जाएगी कि फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में भी सामान किस तरह रखना है ताकि आपको स्टोरिंग कॉस्ट की टेंशन ना रहे और कस्टमर के पास आराम से और जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट पहुंचे। और ये चीज होती है FBA एंड FBF। ठीक है, नेक्स्ट चीज एक और आती है फ्लिपकार्ट एश्योर्ड, इसको बोला जाता है F एश्योर्ड। ये क्या होता है, ये देखो, ये दिख रहा है टैग, आपको चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये 185 रुपीज इसका प्राइस ज्यादा है, इसका प्राइस है 120 रुपीज, इसका प्राइस ज्यादा है। इसके पास बाय बॉक्स आ रखा है, सारे ऑर्डर्स इसके पास जा रहे हैं जबकि इसका प्राइस भी कम है। तो इस बंदे ने फ्लिपकार्ट एश्योर्ड टैग ले रखा। तो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड टैग भी क्या कहते हैं कि आपका एक फ्लिपकार्ट के अंदर बेनिफिट होता है जिससे आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपका प्रोडक्ट ऊपर आएगा, आपका नाम ऊपर आएगा, आपका सेलर नेम ऊपर आएगा। इससे क्या होगा, सेलर नेम ऊपर, ये देखो सेम जो एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, इन सबके प्राइस 131, 155, 145, 145 सबके प्राइस कम है, पर बेच कौन रहा है 185 जिसका प्राइस भी ज्यादा है और वो बेच भी वही रहा है, टॉप पे वही आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है। अब आप लोग इसमें से मुझसे पूछोगे कि सर इसका प्राइस 184 है, ये नीचे क्यों आ रहा है, इसका सभी कंपनी की एश्योर्ड भी है। यहाँ पर देखो इसकी रेटिंग भी तो है, इसकी रेटिंग 4.5 है, इसकी रेटिंग 4.3 है, तो इस वजह से ये बंदा टॉप पे आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी चीज सिखाऊंगा मैं कि किस तरह आप लोग ये चीज भी खेल सकते हो। अब आपने क्या करना, आपने ये प्रोडक्ट प्रोक्योर कर लिया इसके मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, आपने कहा जी क्या कहते हैं कि मुझे, आपने सेटिंग बिठाई, आपको प्राइस बाकी लोगों से 10 रुपए सस्ता करवा दिया। सस्ता करवाने से क्या हुआ, आप लोगों ने फ्लिपकार्ट एश्योर्ड किया और यहाँ पे क्या कहते हैं इससे 10 रुपए सस्ता करके बेचा। उससे क्या होगा, आपके पास बाय बॉक्स आ गया, आपके दिन ब दिन ऑर्डर इसके आने शुरू हो गए। गर्मियां आ रही हैं, ब्लेंडर हर किसी को चाहिए, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं कि वो इलेक्ट्रिक वाला ले, दुकानों पे शुरू होते, तो लोगों ने ये परचेज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं सिखाऊंगा कि फ्लिपकार्ट एश्योर्ड में कैसे करना। फ्लिपकार्ट एश्योर्ड से क्या होगा, इसमें आपको किसी के वेयरहाउस में रखने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट एश्योर्ड में अप्लाई करना होता है, कुछ एक उनकी कुछ नॉर्म्स वगैरह होती है कि अपना सामान वो क्या कहते हैं कि रैक्स वगैरह में रखो, टेपिंग वगैरह लगाओ, एक लेबल लगा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, बस वही चीजें उसकी नॉर्म्स होती हैं। आपका फ्लिपकार्ट एश्योर्ड टैग्स आ गया तो आपके पास लाइव एग्जांपल है कि इतने सारे सस्ते में से आपका प्रोडक्ट टॉप पे आ रहा है। इससे क्या होगा, ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो भैया प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। सिंपल सी बात, और कोई लॉजिक नहीं है और कोई मैथमेटिक्स या साइंस इसमें नहीं है, बस दिमाग लगाओ। मेन काम आपका क्या होगा, क्या कहते हैं कि अपना प्रोडक्ट एक अच्छे सोर्स से प्रोक्योर कर। वो चीज भी आपको मैं सिखाऊंगी, कौन सी फैक्ट्रीज, कौन सी कंपनीज कहाँ कहाँ पे जुड़ी हुई है। आप लोग बोलो जी सर ये प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट कौन सी स्टेट से आता है, कौन सी सिटी से आता है, आपको मैं ये तक बता सकता हूँ कि भाई प्लास्टिक का प्रोडक्ट कौन सी सिटी से आता है। आपने बोला जी मुझे क्या कहते हैं कि रग्स बेचने हैं, रग्स कौन सी सिटी मैन्युफैक्चर करते हैं, ये चीज आपकी मैं हेल्प करूंगा। गूगल पे किस तरह सर्च करना है, अपने क्या कहते हैं कि अगर आप किसी चीज के मैन्युफैक्चर नहीं हो, आप ट्रेडर हो, आपने कहीं से परचेज करना, आगे सेल करना, तो गूगल पे किस तरह सर्च करना है कि भैया कौन सी सिटी में कौन से लोग क्या कहते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब कांच कहाँ बनता है, आप क्या कहते हैं कि स्टील कहाँ बनता है, दिल्ली में कहाँ बनता है, दिल्ली में सदर बाजार में क्या क्या चीज आपको मिल सकती है, सदर बाजार में कहाँ कहाँ आप लोग जा सकते हो। ये सारी चीज आप लोगों को मैं सिखाऊं ताकि आप लोगों को मार्केट समझ आए। मार्केट समझ आने के बाद आप फिर ये खुद डिसाइड कर सको कि आपको क्या प्रोडक्ट बेचना है। गाइस मैं प्रोडक्ट सेल करना नहीं सिखाऊंगा, आप लोगों को बस क्या करना है, प्रोडक्ट ढूंढना है कि मैंने जी ये प्रोडक्ट बेचना है। अब उसको बेचना कैसे है वो चीज मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स आपका होगा, क्या कहते हैं कि हम लोग जो कोर्स में सिखाएंगे, सबसे पहली चीज आपको क्या कहते हैं लीगल टर्म से लेकर अकाउंट बनाने से लेके देन वी विल हेल्प यू कि आप किस तरह का क्या कहते हैं कि अपना प्रोडक्ट लेने वाले हो, प्रोडक्ट सोर्स किस तरह करोगे, उस चीज को पूरी गाइडेंस दी जाएगी। आपने जब डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मैंने ये प्रोडक्ट ही बेचना है, उसके बाद जाके क्या कहते हैं कि आपकी फिर लिस्टिंग का पार्ट आपको सिखाया जाएगा कि प्रोडक्ट इस तरह लिस्ट किया जाएगा, इसका ये प्राइस डाला जाएगा, इसका ये चीज होगी। ये करने के बाद
आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू होंगे। ऑर्डर्स आने के बाद क्या कहते हैं कि फिर आपका बिजनेस फ्लिपकार्ट अमेजोन पे चलना शुरू हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग आपको सिखाएंगे। जितने भी क्या कहते हैं आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा, आपको उस कोर्स ड्यूरेशन को बताया जाएगा कि भाई साहब इस तरह काम करना है। एंड आपको मैं एश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों का बस ये काम है कि सस्ता प्रोडक्ट प्रोक्योर कर लिया, आप लोगों का एक नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के घर में कोरोना की वजह से बहुत लोग दिक्कत में हो गए यार। मैं समझता हूँ, मेरे घर में दिक्कत थी, सबके घर में दिक्कत है, पर ये एक नया रास्ता है क्या कहते हैं कि अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का। बीट आपके घर क्या कहते हैं कोई जिसकी जॉब चली गई है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है जो क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है, ठीक है, आपका बिजनेस, आपकी शॉप क्लोज हो रखी है उस चीज के लिए। घर पे हमारी मदर सिस्टर सुबह क्या कहते हैं काम करने के बाद फ्री होती हैं, उनके लिए एक नया बिजनेस, उनके लिए क्या कहते हैं कि एक नया रास्ता हम लोग उनको सिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी कोर्स ज्वाइन करो, आप कोर्स ज्वाइन करो, उनको सिखाओ, उनको कोर्स ज्वाइन करवाओ। जहाँ पे क्या कहते हैं कि आपकी मदर या सिस्टर आपके फादर की हेल्प कर रही है घर के काम में, वहीं आपको फाइनेंशियली वो लोग हेल्प कर सकती है। ये पॉइंट ऑफ व्यू सोचो यार कि उनके लिए एक नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आपके पेरेंट्स रिटायर हो गए हैं, रिटायर करने के बाद कुछ अभी प्रोडक्टिव काम नहीं हो पा रहा है इन एनी केस, तो ये चीज करवाओ। उनको रिटायर नहीं, उनके नए टायर लग जाएंगे, बल्कि यार उनका नया खुद काम करना शुरू कर देंगे, साथ दिन खुद बिजी हो जाएंगे। तो ये उन चीजों के लिए करवाओ। इससे क्या होगा, इसमें कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक प्रिंटर चाहिए, दैट्स इट। लैपटॉप पे प्रोडक्ट लिस्ट करो, प्रिंटर से ऑर्डर प्रोसेस करो और ऑर्डर पैक करवाए। लड़का 8,000 रुपए का लड़का पैक करेगा, बस आपका क्या टेंशन, घर बैठे बैठे इनकम होएगी। बस करना क्या है, एक प्रोडक्ट की तो सर्च करना है, दिन भर लगा दो फ्लिपकार्ट पे क्या प्रोडक्ट की स्कैरसिटी है, वो प्रोडक्ट सर्च करो। अब भैया एक बात बताता हूँ मैं, एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल। लास्ट ईयर फुल लॉकडाउन था, ठीक है, बहुत लोग क्या कहते हैं घर बैठे हुए थे, सब लोग ही घर बैठे थे, ठीक है, सारे लोग घर बैठे थे, ठीक है, बहुतों के बिजनेस ठप हुए थे। पर लास्ट ईयर एक डेटा में दिखाया गया है कि इंडिया में लास्ट ईयर और इस साल के मिड तक बहुत सारी क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसीज बढ़ी हैं। प्रेगनेंसीज बढ़ने से क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। अब सबकी माएँ घर पे है, कोई माँ घर से बाहर नहीं कर अपने नए न्यूबॉर्न बच्चे को लेके, भाई बच्चों की कैटेगरी में घुस जाओ। अब हर माँ को बच्चों के लिए सामान तो चाहिए, बच्चों की नैपी चाहिए, बच्चों के कपड़े चाहिए, बच्चों के डायपर चाहिए, बच्चों की कैटेगरी में घुस जाओ, बच्चों की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स निकाल लो, बच्चे तो पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे किस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, तो ये सारी आपको गाइडेंस मैं दूंगा। बस आपको क्या करना है, डेडिकेटेडली इस चीज में घुसोगे ना, ट्रस्ट मी, नया रास्ता आप लोगों को मिलेगा एंड नया बिजनेस आप लोगों को स्टार्ट होगा। तो मैं दोबारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आने की तैयारी पर है। जिस दिन आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ गया उस दिन आप लोगों की चांदी ही चांदी है। तो आप लोगों को किस तरह अपने प्रोडक्ट को का लिंक वायरल करके उस पर क्लिक्स लाने हैं ताकि कोई बंदा आपके पास क्लिक करे, उससे क्या होगा, लोग आपके प्रोडक्ट दिखेंगे, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फ्लिपकार्ट क्या कहते हैं, आपके प्रोडक्ट को धीरे 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 फर्स्ट सेकंड पेज पे लाना शुरू कर देगा। जब फर्स्ट सेकंड पेज आपका प्रोडक्ट आना शुरू हो गया तो मतलब आपका क्या कहते हैं कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेलिंग का चांस बढ़ गया, ठीक है। तो आपको मैं ये चीज भी सिखाऊंगा कि फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स, आपके अमेजोन के जो प्रोडक्ट्स, उसके लिंक्स किस तरह आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको डाल के उसको प्रमोट भी करना है ताकि लोग आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करें एंड आपको क्या कहते हैं कि क्लिक्स बढ़े और आपके विजिबिलिटी, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो, ठीक है। अभी तक यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया हो अभी तक यहाँ तक। गाइस कमेंट्स में लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं कि फादर की मेडिकल बुक्स का बिजनेस है, इसका रिस्पॉन्स है कि नहीं है। एक बात बता दूं आपको, बुक्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसपे जीएसटी नहीं लगता। ओके, जीएसटी नहीं लगता मतलब आप लोगों को एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और बुक्स क्या चीज है जो क्या कहते हैं कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बहुत ज्यादा सेल हो रही है। तो आई गेस आपका नाम श्रुति है। श्रुति अगर क्या कहते हैं कि उनका क्या कहते हैं मेडिकल बुक्स का बिजनेस है, अगर वो खुद एक पब्लिशर वगैरह है तो उनके लिए बहुत, ट्रस्ट में, बहुत अच्छा मौका है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे क्या कहते हैं कि अपना बुक्स वगैरह लिस्ट करने का। क्योंकि
आजकल जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं सब लोग घर बैठे हुए हैं, कोई घर से बाहर, सिंपल सा लॉजिक समझ यार, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा, हर किसी को सामान घर पे चाहिए। अब चाहे वो सीन है, वो आपका अमेजोन पे इस प्रोडक्ट्स में सेल कर रही है, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स में, वो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं हर्बल लाइफ के, ठीक है। अब ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहते हैं कि हर्बल लाइफ से बिना परमिशन के, बिना उनके अथॉरिटी के उन्होंने ये प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए, ठीक है। हर्बल लाइफ ने उनको परमिशन नहीं दे रखी थी, तो उनका क्या सीन हुआ बेचारी का, उन्होंने प्रोडक्ट सेल किए और एक दिन क्या कहते हैं हर्बल लाइफ वाले ने, जो अथॉरिटी ने उनका प्रोडक्ट देखा, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी अमेजोन पे कि ये भैया ये बंदा हमसे बिना पूछे लिस्ट कर रहा है। तो अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अकाउंट सस्पेंड करने का मतलब क्या है कि अमेजोन आपकी पेमेंट्स भी स्टॉप करेगा। उनके अराउंड 6.5 लाख रुपए अमेजोन ने स्टॉप कर लिए 3 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बिना किसी के परमिशन के, बिना हर्बल लाइफ के परमिशन के प्रोडक्ट सेल कर रही, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे मेन बात ये होती है, अगर आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का क्या कहते हैं कि सेलिंग करने वाले हो, तो भैया बिना ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के आप लोग लिस्ट ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि कभी कंप्लेंट होगी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अमेजोन इस केस में बहुत स्ट्रिक्ट है। अमेजोन के स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि आप कभी भी काउंटरफिट प्रोडक्ट या बिना ब्रांड का ऑथराइजेशन के आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपका अकाउंट में सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड करने का मतलब कि आपका पेमेंट्स रोक देता अकाउंट अमेजोन, और आपकी कोई भी लिस्टिंग क्या कहते हैं कि विजिबल नहीं होती। बट वो पेमेंट्स आपके पास 3 महीने के बाद जाके आती है। पेमेंट्स मारता नहीं है, पेमेंट्स पूरी आएंगी, और पेमेंट्स आपकी 3 महीने के बाद जाके आपके अकाउंट में क्या कहते हैं कि शो होती है। तो ये भी आपको मैं सिखाऊंगा क्या कहते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको, कौन से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए, कौन से ब्रांड के नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे ब्रांड हैं जो पॉपुलर नहीं है अभी, तो वो लोग चाहते हैं कि कोई उनके प्रोडक्ट्स आगे जाके अमेजोन पे सेल करे, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। प्लस अमेजोन फ्लिपकार्ट पे एक और चीज है जो आप लोगों को आगे जाके दिक्कत हो सकती है, दैट इज जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, ये बात भी ध्यान रखना कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सस्पेंड अकाउंट हर रोज हो रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई बंदा अगर कोई चीज वायलेट करता है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट के अकाउंट, अमेजोन फ्लिपकार्ट उसका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी गाइडेंस दूंगा कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सस्पेंडेड अकाउंट किस तरह खुलवाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन अमेजोन फ्लिपकार्ट को सेंड करना है कि आगे से आप वो गलतियां ना करो, क्या उसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। इनिशियल लेवल पे अगर आपका फर्स्ट या सेकंड टाइम अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम अकाउंट सस्पेंड हुआ, तो उसको खुलवाया किस तरह जा सकता है, उस केस में आपकी हेल्प मैं करूंगा, ठीक है। बट अगर आप ये चीज एक्सपेक्ट करो कि आपने क्या कहते हैं डुप्लीकेट या कॉपी प्रोडक्ट या जेन्युइन प्रोडक्ट आपने नहीं बेचे, तो उस केस में अमेजोन आपका परमानेंटली अकाउंट भी डिलीट कर देता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को शेयर करी जाएंगी कि आपका क्या कहते हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसे सेल कर रहे हो जो किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स है, आपने काउंटरफिट करे प्रोडक्ट सेल किए, अकाउंट सस्पेंड हुआ, तो उसको रीएक्टिवेट भी कैसे करते हैं, वो सारी चीज आपको सिखाई जाएगी। आपको क्या कहते हैं कि अकाउंट सस्पेंशन का भी हेल्प दी जाएगी। बट आपका अकाउंट अगर 3-4 बार सस्पेंड हो चुका है और दोबारा हो गया, उस केस में भैया हम लोग भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। उस केस में फिर थर्ड पार्टी सर्विसेज अमेजोन की जो होती हैं वहां से कॉन्टेक्ट करके आपका अकाउंट खुलवाया जाता है, ठीक है। तो इनके आपका अकाउंट भी सस्पेंड होता है, तो उस केस में आपको मैं पूरी हेल्प करूंगा अकाउंट खुलवाने में, ठीक है। फ्लिपकार्ट के भी अलग रूल्स है अकाउंट सस्पेंशन के, तो वो भी आपकी हेल्प की जाएगी। ये सब होने के बाद अब आता है क्या कहते हैं कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जब आपने ये सब किया, नेक्स्ट चीज है सीए। भैया जब भी आप कोई भी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेल करोगे, आप हर एक बंदे से अपने एमआरपी में टैक्स जरूर लेते हैं। तो अगर आप टैक्स उसको ले रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को वो टैक्स डिपॉजिट भी करवाना होगा। उस केस में क्या कहते हैं आपको हर मंथ में आपको मंथली रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। अगर आप मंथली रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो आपका क्या कहते हैं कि 50 रुपीज पर डे का क्या कहते हैं कि आपको पेनल्टी पड़ती है। जितने दिन लेट करोगे उतने पर डे की 50 रुपीज पेनल्टी पड़ेगी। तो ये भी चीज आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको रिटर्न वगैरह किस तरह फाइल करवानी है, क्या सीए से बात करनी है, क्योंकि सामान बेचना आसान है, आगे रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो आप
आपके ऊपर गवर्नमेंट की ओर से एक्शन आ सकता है, गवर्नमेंट की ओर से आपके ऊपर लीगल एक्शन आ सकता है, जो आपको क्या कहते हैं आगे जाके आपको जेल में भी डलवा सकते हैं। आपने टैक्स गवर्नमेंट का टैक्स कहा है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं जो लीगल टर्म्स में सीए से किस तरह आपको रिटर्न वगैरह फाइल करवानी है, तो उस चीज के बारे में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने सीए से बात करोगे, क्या सीए की मंथली कॉस्ट होती है, क्या सीए को आपको पेमेंट वगैरह करनी है, तो उस चीज में आपको पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। लास्ट आप लोगों को क्या कहते हैं कि मैं बताऊंगा यहाँ पे प्रोक्योरमेंट। सामान प्रोक्योर कहाँ से करना है, किस तरह करना है, जरूरी नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखना कि एक बार में तुम लोगों ने बल्क में सामान ले लिया, वो चीज नहीं करनी है। बल्क में एक बार सामान ले लोगे, सामान नहीं बिका, फिर क्या लॉस करा के बैठ जाओ। तो इनिशियल स्टेज में सामान किस तरह लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, वो चीज आपको सिखाऊंगा मैं कि भैया कौन कौन सा आपने जो प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, कितना कितना सामान लेना है, तो वो चीज सारी आपको डिस्क्राइब करी जाएंगी मेरे एंड से कि भैया इसका इतना सामान लीजिए, इसका इतना सामान लीजिए, ताकि आपको आगे जाके सामान अगर नहीं बिका, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला, आउट ऑफ फैशन चला गया, तो आपके ऊपर वो उसका बर्डन ना आए। तो वो चीजें आपको मैं प्रोक्योरमेंट पूरी चीज सिखाऊंगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट लिस्टिंग का थोड़ा सा पार्ट। ओके, ये फ्लिपकार्ट का पैनल है। आपको आज मैं थोड़ी सी इसको लिस्टिंग किस तरह करते हैं उसका आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, प्रोसेस क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग, ये आपका मेन पैनल होता है, यहाँ पे ना ऐड न्यू लिस्टिंग का तरीका होता है। यहाँ पे जाके क्या कहते हैं कि आप लोग फ्लिपकार्ट पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट करने के दो तरीके होते हैं, सिंगल लिस्टिंग या बल्क लिस्टिंग। आपको एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, आपको एक साथ एक लिस्ट करना है, तो वो सारा तरीका आपको सिखाया जाएगा कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। सिंगल लिस्टिंग करते हैं, सिंगल लिस्टिंग में किस तरह अपना प्रोडक्ट चूज करना है, क्या ब्रांड चूज करना है, किस तरह अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाला कैंडल, कैंडल कौन सी कैटेगरी में कैंडल हमारी आनी चाहिए, कौन सी हम लोग कैंडल के होल्डर बना रहे हैं या कैंडल की बैग्स बना रहे हैं या परफ्यूम वाली कैंडल्स बनाते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। अगर हम यहाँ पे कैंडल की कैटेगरी कलर ले लेंगे तो हमारी लिस्टिंग डिसअप्रूव हो जाएगी, डिसअप्रूव हो जाएगी तो आगे जाके प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लिस्टिंग कैसे करोगे, लिस्टिंग करने की क्या क्या बेसिक चीजें हैं, अपना टाइटल किस तरह बनाओगे, आपको एसईओ फ्रेंडली टाइटल किस तरह बनाना है, आपको कीवर्ड्स किस तरह रिसर्च करने हैं, कीवर्ड रिसर्च करने आपको टूल भी दिया जाएगा हमारे एंड से कि आप लोग कीवर्ड रिसर्च किस तरह कर सकते हो, तो वो भी आपकी हेल्प की जाएगी। आपको आगे जाके फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कौन कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, क्या कीवर्ड ट्रेंड में है, ये सारा सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपको मैं थोड़ा हाईलाइट दे दिया फ्लिपकार्ट अमेजोन का कि आपको हमारे पूरे कोर्स में ये चीजें सिखाई जाएंगी। एंड इस तरह क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अपना एक नया प्रोडक्ट, नया बिजनेस, नई लाइन आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आई रियली होप क्या कहते हैं कि आप लोग आज के टाइम पे जो कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ये शायद आपको ई कॉमर्स एक नया रास्ता दिखा देगा, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर, ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उस चीज का आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। अब आप जो जो क्वेश्चन आपको मेरे से पूछने हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। अमन का आई गेस मैसेज है कि फैशन क्लोथ, हाँ आपको अगर आप फैशन क्लोथ आप सेल करना चाहते हैं तो बड़ी आराम से आप सेल कर सकते हो। किस तरह करना है वो चीज आपको मैं सिखाऊंगा। इसमें आपको क्या कहते हैं मॉडल की हेल्प भी पड़ेगी, आपको मॉडल की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट वो फोटोग्राफी में मॉडल किस तरह बात करते हैं, क्या उसका एग्रीमेंट वगैरह होता है, तो वो सारी चीजें भी आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। यस, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर तो आपको तब भी ट्रेडमार्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो भी ब्रांड है
वो क्या कहते हैं कि किसी ना कोई नाम तो होगा उसका, कोई ना किसी नाम से तो आप उसको सेल करो, वो क्या कहते हैं कि लिस्ट करोगे, तो उसके लिए भी आपको क्या कहते हैं कि एक ट्रेडमार्क की जरूरत पड़ेगी। ट्रेडमार्क आपको एक बात और बता दूं, ट्रेडमार्क अलग अलग कैटेगरी में फॉल करता है। अराउंड 35 क्लासेस है ट्रेडमार्क पे, तो आपका प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी में फॉल करेगा। तो उसका क्या कहते हैं कि ट्रेडमार्क क्या कहते हैं कि आपको लेना, वो चीज आपको पूरा सिखाऊंगा। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? अमन, अब मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, लोकल मार्केट से लाइक सदर बाजार से आप लोग प्रोडक्ट्स ले सकते हो। मैंने भी जब प्रोडक्ट आपका ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, मैंने भी क्या कहते हैं कि आपका एक सदर बाजार से प्रोडक्ट्स मैंने कुछ चूज किए थे, वहां से प्रोडक्ट लेके आता था। एंड उस केस में क्या कहते हैं कि मैं उन्हीं को प्रोडक्ट को सेल कर रहा था। नहीं, सदर बाजार वाला हर बार अब इनवॉइस देगा, क्योंकि उनके ऊपर खुद डंडा आ रखा है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर वो जीएसटी इनवॉइस नहीं देते हैं तो उनकी दुकान बंद हो सकती है। यश, ये बात क्लियर रखियो, हर एक बंदा तेरे को इनवॉइस देगा अगर तू जीएसटी इनवॉइस उनसे लेगा। ये बात क्लियर है। मैंने भी सारे प्रोडक्ट सदर बाजार से जो मैं ले रहा हूँ, मैं सारे क्या कहते हैं कि जीएसटी इनवॉइस पे ले रहा हूँ। ओके, एआर वर्मा, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स। सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की क्या कहते हैं कि आपको मैं एक, रुको सब लोग एक मिनट यहाँ पे स्क्रीन पे देखो मेरी। एक सर का क्वेश्चन है एआर वर्मा जी का कि सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स हम लोग सेल कर सकते हैं। इस केस में क्या कहते हैं, आपको मैं चीज दिखाता हूँ। फ्लिपकार्ट की एक पार्टनर कंपनी है, उसका नाम है टू गुड। ये भी आपको सिखाऊंगा मैं, अगर जो लोग क्या कहते हैं कि सेकंड प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं। यहाँ पे सारे रिफर्बिश्ड जो चीजें होती हैं वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इस पे सेल करवाते हैं। ये फ्लिपकार्ट की क्या कहते हैं चिल्ड्रन कंपनी है टू गुड। सारे रिफर्बिश्ड सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जिस तरह जो फोन पूरे यूज होके दोबारा ठीक होके आए होते हैं, ये सारा हम लोग फ्लिपकार्ट पे ए टू गुड पे लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको सिखाऊंगा। जो लोग क्या कहते हैं आपने सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली डील करना चाहते हैं सेकंड हैंड में, तो वो सारे लोग टू गुड पे भी लिस्ट कर सकते हैं। तो वो चीज आपको मैं पूरी सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। श्रुति, अगर आप ट्रेडर हो तो सबसे पहली बात, मेडिकल बुक्स का सबसे बेटर क्या कहते हैं कि अगर रिस्पॉन्स देखा जाएगा तो क्या कहते हैं कि अमेजोन पे है। एंड कोशिश करो क्या कहते हैं कि आप अमेजोन पे जो भी तुम बुक सेल करते हो, कोशिश करो क्या कहते हैं कि उसका जो प्राइसिंग वगैरह का पार्ट है उस पर मेन फोकस करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन है, तो उस पर दिक्कत आ सकती है। कंपटीशन की वजह से ही क्या कहते हैं कि आपके रिस्पॉन्स आना मुश्किल हो सकता है। बाकी एक बार आप मुझे लिंक शेयर कर देना अपने प्रोडक्ट्स का, तो उस केस में मैं आपका प्रोडक्ट्स चेक कर लूंगा और बता दूंगा कि आपको क्या कहाँ ब्लैक कर। ठीक है, एससीओ बीबीसी क्या होता है? एससीओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि मैं आपको सिखाता हूँ ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे किस तरह आएगा, तो वो चीज आपको एससीओ में सिखाई जाएगी। पीपीसी होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक में क्या करते हैं कि आपको एड्स चलानी सिखाता हूँ मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन। ओके, ग्रोसरी और फूडिंग आइटम्स का सर, ग्रोसरी और फूडिंग आइटम्स के लिए क्या कहते हैं कि आपको FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका क्या कहते हैं कि आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन आपके घर पे एक ऑडिट होएगी, ऑडिट होने के बाद, ऑडिट अप्रूव होने के बाद आप फिर ग्रोसरी की आइटम्स फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल कर सकते हो। डीआरडी में मेरे से 2-3 स्टूडेंट ऐसे पढ़ के गए हैं जो ग्रोसरी आइटम सेल कर रहे हैं, तो आपको मैं उनका रेफरेंस भी दे दूंगा, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हो। ठीक है, ओके। टू स्टार्ट द ई-कॉमर्स बिजनेस वी हैव टू अप्लाई फॉर न्यू जीएसटी और नॉट। अगर आपके पास निखिल और पहले से कोई जीएसटी है आपकी कंपनी का या आपके बिजनेस का, आप उसको यूज कर सकते हो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करवा के। अगर नहीं है जीएसटी तो आपको नया जीएसटी लेना पड़ेगा। बिना जीएसटी के क्या कहते हैं कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे नहीं सेल कर सकते, ये बात ध्यान रखना। रॉन्ग रिटर्न के केस में हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं? रोनी राठौर, एक बात आपको बताऊंगा, अगर आप कस्टमर को रॉन्ग आइटम सेंड कर रहे हो, जो आपने लिस्ट किया है और क्या कहते हैं कि जो कस्टमर ने मोबाइल आपने डिफरेंट आइटम सेंड किया, तो आपको एनी केस वो प्रोडक्ट वापस लेना ही पड़ेगा और आपको रिटर्न के चार्जेस भी आएंगे, तो वो आपके लिए लॉस है। अनटिल अनलेस आपके पास उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री ना हो, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लिस्ट ना ही करो तो बेटर है, वरना आपको क्या कहते हैं कि डबल खर्चा पड़ेगा। वो चीज भी सिखाऊंगा, ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि किस तरह के खर्चे पड़ते हैं, क्या रिटर्न कॉस्ट आती है, तो भी आपको सिखाऊंगा। श्रुति, एक्सेस नहीं चाहिए मुझे,
मुझे क्या कहते हैं कि एक अपने एक मेल ड्रॉप करिए मुझे, जो तेरे फादर के क्या कहते हैं कि लिस्टेड है मेडिकल बुक्स, उसका लिंक मैं वो चेक करूंगा, उससे बताऊंगा कि कहाँ लैग कर दूं। ठीक है, मुझे लिंक वगैरह, मुझे कोई एक्सेस नहीं चाहिए, सिर्फ एक लिंक फॉरवर्ड कर दिए कि सर ये मेरे फादर की बुक्स है अमेजोन पे, आप इसको चेक कर लो। ठीक है, रेडीमेड वुमेन वेयर कुर्तीज, ओके, रेडीमेड वुमेन वेयर कुर्तीज के लिए क्या कहते हैं कि आपका नाम क्या है, चेतना जी। चेतना जी देखो, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपीज है, सबसे पहले हम लोग आपको, मैं इसमें ये सिखाऊंगा कि इसमें फ्लिपकार्ट की कमीशन क्या है, फ्लिपकार्ट के क्या कहते हैं फिक्स्ड फीस क्या है, फ्लिपकार्ट की कमीशन चार्जेस क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि आपको इस पे शिपिंग, देखो शिपिंग एक बात बताऊंगा, फ्लिपकार्ट आधे किलो का शिपिंग रेट फ्लिपकार्ट का 60 रुपीज है नेशनल शिपिंग का। तो वो सारी चीजें ऐड करनी है, आपका 5% आप पे इसका पे क्या कहते हैं जीएसटी लगेगा, आपकी पैकिंग कॉस्ट, आपकी रिटर्न कॉस्ट, आपका रिटर्न की शिपिंग कॉस्ट, तो ये सारी चीजें आपकी ऐड होंगी। तो अगर आप 100 रुपए का, तो 250 से 300 रुपए लिस्ट करना पड़ेगा, तब आपकी जेब में कुछ प्रॉफिट होएगा। बाकी जब एक प्रोडक्ट हम कैटेगरी वाइज डिफाइन होता है, तो आपको बेटर उसका रेट कैटेगरी वाइज देके ही बता पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एनीवन फॉर जीएसटी, इज इट कंपल्सरी दैट एड्रेस विल बी कमर्शियल? नहीं, मेरे 4 साल हो गए, आज भी मेरे जीएसटी नंबर में मेरे घर का एड्रेस ही है, तो जीएसटी के लिए कंपल्सरी नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, अभी कुछ लास्ट 6 to 8 मंथ पहले से जीएसटी के क्या कहते हैं कि नंबर लेने में कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, पर अभी भी घर के एड्रेस पे जीएसटी आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज क्या कहते हैं कि आप एक बार जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और मेरे जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मैंने अपना मेरा खुद का एड्रेस भी घर का ही डाला हुआ है जीएसटी पे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। बस आपके पास रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ होना चाहिए, तो आपका जीएसटी अप्रूव हो सकता है। और अभी तो कोरोना के टाइम अगर जीएसटी अप्लाई करोगे तो आपका इजीली आ भी जाएगा, क्योंकि घर पे कोई वेरिफिकेशन कर कोविड के टाइम पे, तो आपको जीएसटी लेने का सही टाइम भी अभी है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स निष्ठा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट पे, डिपेंड करता है टाइप का प्रोडक्ट है। मैं आपको ये बोलूंगा, कहते हैं कि आप तरह हनी वगैरह हो गया, आपका क्या कहते हैं कि चून वगैरह हो गया, आपकी ये क्या कहते हैं कि चाय पत्ती वगैरह होगी, इसका रिस्पॉन्स बहुत 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 अच्छा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स भी आप सेल कर सकते हो। बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट बताओ, उसका मैं देख के बता सकता हूँ कि क्या उसका रिस्पॉन्स है कि नहीं है। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेजोन, हर रोनी राठौर हर कैटेगरी प्रोडक्ट 7 days रिटर्न में है, एक रिटर्न रिटर्नेबल है। ये सब फ्लिपकार्ट डिसाइड करता है, डिसाइड नहीं करता। ठीक है, हम क्या नहीं। ठीक है, और अमेजोन पर रिटर्न की कॉस्टिंग जरूर चार्ज है। ओके श्रुति, ईमेल आईडी आपको क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, आप जो भी आपके काउंसलर्स हैं आप उनसे क्या कहते हैं कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर मेरा ले सकते हो, आप उस पर कुछ भी मुझे मेल करो, आपको मैं एज अर्ली एज पॉसिबल आपको मैं रिस्पॉन्स उस पर दे दूंगा। अगर मयूर पटेल, अगर कोई कंपनी के ऊपर कंपनी के ब्रांड नेम सिंबल, एग्जांपल मेरे पास मोबाइल कवर, उसके ऊपर एप्पल और सैमसंग का ओप्पो का सिंबल है, तो मुझे किस तरह सेल करना होगा? ओके, आपका नाम क्या है? मयूर, मयूर पटेल, गुजराती। पटेल साहब, बात ये है क्या कहते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन वगैरह सैमसंग एप्पल का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, तो वो 1% इन्फ्रिंजमेंट के अंदर फंस सकता है। कोई भी क्या कहते हैं कि आप लोग सेल करोगे कि मोबाइल कवर, उसके ऊपर कोशिश करो कि अपना ब्रांड नेम डालो, अपना ब्रांड नेम प्रिंट करो। ठीक है, जितने भी आप देखोगे कहते हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट में मोबाइल कवर सेल हो रहे हैं, सारे प्रिंटेड कवर्स लोग सेल कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अगर आप ये तेरा सैमसंग एप्पल का प्रिंट लगा के करते हैं, वो कुछ टाइम तक के लिए एक्टिव रहता है, उसके बाद जाके क्या कहते हैं कि वो इन्फ्रिंजमेंट में केस में डीएक्टिवेट हो जाते हैं लिस्टिंग। इसलिए मोस्टली सेलर जो फ्लिपकार्ट अमेजोन में सेल करते हैं प्रिंटेड ही सेल करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चेतना, यू वेलकम। ओके नेक्स्ट रोए, प्रोडक्ट, ओके ये चीज बहुत डीप लेवल है। आप बोलोगे सर अभी मुझे दिखा, मैं वो चीज नहीं बात करके डराना और कर सकते हैं, बट अगर आप सब लोगों को
फ्लिपकार्ट अमेज़न पे जाओ, कोई भी कैटेगरी प्रोडक्ट में जाओ। एक मिनट स्क्रीन कर मैं देता हूँ, एक मिनट रुको, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, सब लोग देखो मेरी स्क्रीन पे एक बार। ये मैं गया यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे सपोज करो मैं गया फैशन तेरा ब्यूटी टॉयज में, यहाँ पे गया मैंने डाला, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे डाला आई मेकअप ब्रशेस, ऊपर ये दिख रहे रिजल्ट्स 1695, मतलब इसमें कंपटीशन बहुत कम है। वही मैं डालूंगा यहाँ पे न्यू टैब में, अगर मैंने खोला फ्लिपकार्ट, एक सेकेंड, ये देखो न्यू टैब में मैंने खोला यहाँ पे फ्लिपकार्ट, यहाँ मैंने डाला क्या कहते हैं कि शूज, यहाँ डाला मैन शूज, यहाँ पे देखो कंपटीशन कितना ज्यादा है, वही आई मेकअप में कंपटीशन कितना कम है। तो यहाँ से आप लोग जज कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी, कौन से प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना ज्यादा है, कितना कम है। तो यहाँ से आपको ये चीज भी रियलाइज हो सकती है कि आप लोग किस चीज में घुस सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ पे, आई होप क्लियर हो गया हो। दोबारा बता रहा हूँ मैं, इसलिए अगर किसी को शेयर नहीं हुई हो, यहाँ पे देखो, ये मैंने फ्लिपकार्ट पे आई ब्रशेस, आई मेकअप ब्रशेस डाला, यहाँ पे दिख रहा है क्या कहते हैं 1695 रिजल्ट्स, तो मतलब इसका कंपटीशन कम। यहाँ पे मैंने डाला मैन शूज, इसका कंपटीशन दिख रहा है 13,80,000, तो मतलब इसका कंपटीशन ज्यादा है। तो ये चीज कंपटीशन ज्यादा है और ये चीज कंपटीशन कम है। तो आप लोगों का यहाँ पे जवाब मिलता है कि क्या चीज आपके लिए फायदेमंद है, क्या चीज फायदेमंद नहीं है, किस चीज में घुसना है, किस चीज में नहीं घुसना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्क्रीन आई गेस सबको दिख गई होगी, तो मेरी स्क्रीन बीच में स्टॉप हो गई थी। ओके ओके, अब नेक्स्ट यार, जीएसटी रूल चेंज हुआ है। हाँ, थोड़ा जीएसटी का रूल चेंज हुआ है, थोड़ा क्या कहते हैं कि जीएसटी अप्लाई करने में थोड़ी चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस होते रहते हैं। बट अगर अभी आप जीएसटी का क्या कहते हैं कि अप्लाई करोगे तो आपको मिलने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, इज दिस कोर्स फ्री और नॉट? दिस कोर्स इज नॉट फ्री। ओके, आप बाकी अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं। मैं अमन शर्मा, मैं कोई एक कैटेगरी में सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि एक कैटेगरी लिमिटेड है। अब सपोज करो अगर मैं शूज की कैटेगरी में सेल कर रहा हूँ, तो आज की डेट में शूज की कैटेगरी मेरे लिए फायदेमंद नहीं होती। मैं मल्टीपल कैटेगरीज में सेल कर रहा हूँ, मैं किसी एक सिंगल कैटेगरी में सेल नहीं कर। यही चीज फायदेमंद रहेगी कि आपका पिकअप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये किसी का पिकअप एड्रेस चला हुआ है, आप यहाँ पे अपना दूसरा पिकअप एड्रेस चेंज करके अपना घर का डाल सकते हो, घर से फिर वापस अपना ऑफिस का डाल सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड गाइस, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। निष्ठा सर, प्रोडक्ट्स लाइक इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर, यस, प्रोडक्ट्स लाइक इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर वगैरह काफी अच्छा सेल होता है, बट कोशिश करना अपने ब्रांड नेम से ही सेल करना, क्या कहते दूसरा का ब्रांड नेम कॉपी मत करना। अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल हो सकता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखो ओप्पो A7, आपका क्वेश्चन है कि बेस्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर बेटर टू सेल, ये चीज हम नहीं डिसाइड कर सकते भाई। अभी क्या सीन है, गर्मियां आ गई, गर्मियों में गर्मियों के कपड़े ज्यादा बिकेंगे, सर्दियों के कपड़े नहीं बिकेंगे, राइट। पर सबसे ज्यादा कैटेगरी अगर आज की डेट में सेल हो रही है तो वो है बच्चों की कैटेगरी, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग सब मेरे एज के सब लोगों को समझ आती है, बच्चे बहुत पैदा हो चुके हैं लॉकडाउन में, तो हर घर वाले बच्चों के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उनको सबको रिक्वायरमेंट है, किसी के पेरेंट्स बाहर नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ कोरोना। तो सबसे ज्यादा अगर कैटेगरी बूम पे चल रही है तो बच्चों की चल रही है। एक बात और बता दूं, दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ने अगर आपके स्टेट में लॉकडाउन लगाती है तो इसेंशियल आइटम्स पे लॉकडाउन नहीं लगता, और बच्चों की कैटेगरी इसेंशियल आइटम्स के अंडर आती है। ठीक है, तो बच्चों की कैटेगरी करीब कभी बंद नहीं हो सकती। आप लोग अगर इस पे क्या कहते हैं दाव खेलना है तो बच्चों की कैटेगरी में घुस जाओ, इसमें कंपटीशन भी ठीक ठाक है, ज्यादा बड़ा है नहीं,
और ये बंद भी नहीं हो सकता कोविड के चक्कर में। लॉकडाउन में लग गया तब भी तुम्हारा अकाउंट खुला रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस अब स्क्रीन दिख गई होगी। एफिलिएट मार्केटिंग, यार वर्मा जी देखो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपने किसी का प्रोडक्ट लिया, उसका लिंक उठाया, आगे प्रमोट किया, उसको आपको कमीशन देगा, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0% क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि आप नहीं बेट कर सकते, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में जा सकते हो, बट उसमें कन्वर्जन का टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो उसमें बहुत कम कन्वर्जन आती है, मेहनत ज्यादा होती है, कन्वर्जन कम है, तो वो चीज है। बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या कहते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाते हैं, तो आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स भी यहाँ से कर सकते हो। फीडबैक लिंक साहिल अभी मिलेगा, सर क्या कहते हैं कि अभी कर रहे हैं आपको फीडबैक लिंक। ओके रॉय, फ्रॉम वन सेलर अकाउंट यू कैन सेल डिफरेंट आइटम्स और डिफरेंट इंडस्ट्रीज। हाँ जी रॉय, आप एक सेलर अकाउंट से अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग मल्टीपल सेलर अकाउंट एक लैपटॉप से नहीं खोल सकते। अगर आप मल्टीपल सेलर अकाउंट एक लैपटॉप से खोलते हो तो Amazon अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, क्या कहते हैं कि आप डुप्लीकेट काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज Amazon की क्या कहते हैं कि पॉलिसी है कि कभी भी दो दो अकाउंट एक लैपटॉप से नहीं खोलने हैं, तो ये आपको लो, और वरना आपका Amazon का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो रॉय डिफरेंट आइटम सेल कर ले एक अकाउंट से, कोई रोकेगा नहीं, पर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से आइटम सेल करेगा तो उस चीज में Amazon अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। और Amazon ने बहुत अकाउंट सस्पेंड किए उसके। लीगल टर्म्स क्या होती हैं रोनी रसोल? लीगल टर्म्स यही है, वो जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको लीगल टर्म्स उसकी मिल जाएंगी कि मतलब आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल नहीं करना, जेन्युइन प्रोडक्ट सेल करना है, ये सारी लीगल टर्म्स होती हैं। रिगार्डिंग द ट्रेडमार्क, वो सारी लीगल टर्म्स आपको ट्रेडमार्क का लॉयर आपको बेस्ट बता सकता है, वरना आपको बेसिक चीजें चाहिए कि आपको अपने नाम का ट्रेडमार्क लेना जरूरी है। वो चीज आपको आगे जाके, अभी आपकी हेल्प नहीं करेगी, आज से 6-8 महीने 1 साल के बाद जब आपका ब्रांड अच्छा बन जाएगा तो आपकी हेल्प करेगा ट्रेडमार्क। तो मेरा क्या कहते हैं कि अगर कहना मानोगे तो ट्रेडमार्क जरूर ले लेना। सिर्फ 4,500 रुपए खर्च होते हैं 1 क्लास के बस, और कोई खर्चा नहीं आता, तो वो ले लेना बेटर है। चेतना यू वेलकम। साहिल, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द लिंक वेबसाइट ओपन वेयर टू गिव फीडबैक, वो आपको आपका काउंसलर दे देगा। हाउ टू गेट बेस्ट सेलर टैग ऑन फ्लिपकार्ट शो सो माय प्रोडक्ट कम ऑन फ्रंट पेज। रॉय बेस्ट सेलर टैग आप खुद नहीं ले सकते हो, फ्लिपकार्ट और Amazon खुद आपको देते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के क्या कहते हैं कि रिव्यूज के ऊपर, प्राइस के ऊपर, कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो आपको बेस्ट सेलर टैग मिलता है। और फ्लिपकार्ट श्योर टैग उसके लिए क्या कहते हैं कि जब आप फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बनाओगे तो आप फ्लिपकार्ट श्योर के लिए अप्लाई कर दोगे तो वो आपका अकाउंट वो फ्लिपकार्ट श्योर का टैग दे देंगे। उसके लिए कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, जिससे एक प्रिंटर नया खरीदना पड़ेगा, आपके क्या कहते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स आपके मेटल के रैक्स में होने चाहिए, तो वो सारी चीजें उसमें आती है। वन जीएसटी वन सेलर अकाउंट, हाँ जी रॉय, वन जीएसटी वन सेलर अकाउंट ही रहेगा। क्या कहते हैं कि वन जीएसटी से 2 अकाउंट नहीं खुल सकते हैं। यस यू कैन सेल हनी, यू कैन सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, बट उसके लिए आपको ब्रांड से क्या कहते हैं कि ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी कि हाँ आप उनके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अगर आप बिना ऑथराइजेशन के सेल करोगे तो आपके ऊपर इंफ्रिंजमेंट का केस हो सकता है, आपकी लिस्टिंग या अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। वेलकम यार वर्मा, जय श्री राम। ओप्पो A7 कोर्स फीस क्या कहते हैं कि आपको आपके काउंसलर बेटर बताएंगे, ठीक है। हाउ कैन वी मेंटेन इन्वेंटरी रोनी? आप लोग जितना भी माल लेके आ रहे हो, जितना सामान लेके आ रहे हो, आप सब अपना क्या कहते हैं लिस्टिंग में आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। ये देखो लिस्टिंग में गए यहाँ पे, ये मेरी इनएक्टिव ऑल दो, बट यहाँ पे हम लोग स्टॉक बता सकते हैं कितना स्टॉक हमारे पास है। अगर स्टॉक मेरे पास सिर्फ 10 पीस का है तो यहाँ पे 10 पीस डालूंगा मैं। अगर स्टॉक 50 पीस का तो यहाँ 50 पीस डाल दूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरी इन्वेंटरी 10 पीस है। आई गेस आपको इससे समझ आ गया होगा। ओके और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके पैकिंग के लिए जुगाड़, पैकिंग के लिए जुगाड़ में आपको सिखाया जाएगा कि पैकिंग किस तरह करी जाती है। आपकी कोरियर बैग से लेके, पेपर बैग से लेके, थर्मोकोल बैग से, आपके बॉक्सेस से लेके वो भी चीज आपको सिखाई जाएगी।
अगर आप दिल्ली के हो तो दिल्ली में कौन कौन सी फैक्ट्रीज है, कहाँ कहाँ दुकानें हैं, ये भी आपको बता दूंगा मैं कि कहाँ कहाँ से आप प्रोक्योर कर सकते हो। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन गाइस? सर प्रोडक्ट सोर्सिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज बेचनी है वो सही दाम पे नहीं मिलते, जो सही दाम पे मिलते हैं उसके इतने डिमांड नहीं होते, उसका सोल्यूशन भाई ये चीज मैं कैसे बता सकता हूँ पटेल जी। अब जो चीज सोर्सिंग, इसका तो मेरे पास भी कोई आंसर नहीं है ना, सोर्सिंग तो करनी पड़ेगी, ढूंढो। मैंने भी 70,000 की सारी गलियां छान मारी थी अपने टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ढूंढो, मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। ओके, लेबल प्रिंट कैसे करते हैं? जब भी आपका ऑर्डर आएगा तब ऑर्डर के पास ही लेबल प्रिंटिंग का आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है। ठीक है रोनी? हाउ कैन वी सेल मेनी प्रोडक्ट्स अंडर वन जीएसटी? जीएसटी नंबर से कैटेगरी का कोई रिलेशन नहीं है सुमित, कोई भी रिलेशन नहीं है। सीन क्या है, क्या कहते हैं कि आप जीएसटी नंबर सिर्फ गवर्नमेंट वो टैक्सिंग के लिए होता है। आपने क्या कहते हैं, अगर आप स्टील का ग्लास बेच रहे हो तो वो भी सेल कर सकते हो सेम जीएसटी पे, आप प्लास्टिक की बकेट बेच रहे हो वो भी सेल कर सकते हो, आप कपड़े भी सेल कर सकते हो, उसमें कोई रिलेशन नहीं। क्या कहते हैं कि आप कौन सा, क्या कहते हैं कि जीएसटी का मल्टीपल कैटेगरी सेल कर सकते हो आप उसमें। बस अगर आपने जीएसटी नंबर लिया, आपको क्या कहते हैं कि ग्रोसरी आइटम सेल करनी है, तो आपको उसके लिए FSSAI वो भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, मैं अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेता हूँ ऑनलाइन, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने मुझे रिटर्न में मुझे सेल का राइट है। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने मुझे रिटर्न में मुझे सेल का राइट है। अगर आपके पास सेल का राइट है तो क्या कहते हैं कि आपको आप आगे सेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड क्या कहते हैं कि वो आपको एक ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के फॉर्मेट में, ठीक है, अपना स्टैम्प के साथ हर चीज क्या कहते हैं आपको रिटर्न में देगा, तो आपको क्या कहते हैं सेल का राइट है। ठीक है, ओके। डिमांड फोरकास्ट, देख भाई डिमांड फोरकास्ट ऐसे तो कोई नहीं बता सकता कि आगे जाके क्या डिमांड आने वाला है। तो बेस्ट यही होता है कि डिपेंडिंग ऑन द मार्केट मार्केट ट्रेंड। अब देख, अभी मई का महीना चल रहा है, अभी क्या कहते हैं कि तेरी समर के आइटम्स की डिमांड है, तो उसकी फोरकास्ट ये है कि समर के आइटम बिकेंगे। आगे जाके बारिश का महीना आ जाएगा तो रेनकोट वगैरह बिकेगा। ये चीज बेस्ट फोरकास्ट। बाकी भाई अगर मैं फोरकास्ट बता देता तो मैं खुद ना प्रोडक्ट बेच रहा होता। पैकिंग की इन्वेस्ट क्या कैसे, पैकिंग में क्या है देख भाई, अलग अलग कोरियर बैग्स आते हैं, अलग अलग गत्ते के बैग्स आते हैं, तो स्टैंडर्ड एक साइज बना लो, उसके बैग्स वगैरह क्या कहते हैं कि आप लोग ले लो तो आपका बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने दो एक बार। ओके चेतना, वेरी गुड क्वेश्चन। ई कॉमर्स साइट इज अ बेस्ट मूव। देख, ई कॉमर्स साइट बनाना इटसेल्फ कोडिंग, देख जो भी ई कॉमर्स साइट बनेगी वो कोडिंग से बनती है। कोडिंग के लिए आपके पास अगर आप डेवलपर हो तो आपको बेस्ट चीज, अगर आपको डेवलपर नहीं हो तो एक अच्छी ई कॉमर्स साइट कम से कम 40 से 50 हजार की बनती है। ठीक है, उसके बाद वो चल भी ठीक है, क्या कहते हैं कि हमने ई कॉमर्स साइट बना ली, पर उस पर हर रोज प्रोडक्ट अपलोड करना, उसको मेंटेन करना, उस पर सर्वर की एरर्स देखना, उस पर कस्टमर के लिए प्रोसेसिंग देखना, तो वो उस चीज में खर्चा आता है। अगर आपके पास अच्छी खासी फंडिंग है कि हाँ आप लोग क्या कहते हैं कि पहले के एक साल कुछ पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको टेक्निकल नॉलेज है, तो गो फॉर ई कॉमर्स। अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है और आपको पता क्या कहते हैं इतनी फंडिंग नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो गो फॉर क्या कहते हैं ई कॉमर्स, वरना गो फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, कोर्स फीस प्लीज कॉन्टेक्ट टू योर क्या कहते हैं कि सेल्स गाय काउंसलर, वो आपकी हेल्प कर देंगे। और किसी का हाउ टू मेक योर ओन साइट फॉर बिजनेस, आप ऑन वेबसाइट वर्डप्रेस से भी बना सकते हो, आप क्या कहते हैं कि और कोडिंग वाली वेबसाइट भी बना सकते हो मोजेंटो PHP से। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो। 10 मई तो लॉकडाउन हो गया, वेरी नाइस। अब तो और आपके पास टाइम है कि प्रोडक्ट सोचो, प्रोडक्ट देखो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, उससे क्या होगा, क्या कहते हैं कि आपको पता लग जाएगी कि आपको क्या बेचना है क्या नहीं बेचना।
गाइस और किसी का कोई क्वेश्चन? आई गेस कि सबके क्वेश्चन के मैंने जवाब दे दिए हैं। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो बता दीजिए मुझे एक बार। गाइस एनीवन, एनी मोर क्वेश्चन? कोर्स के लिए क्या कहते हैं कि आपको डीआईडीएम के अपने काउंसलर से बात करो। काउंसलर क्या कहते हैं कि आपको कोर्स फीस एंड कोर्स के बारे में डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। एनीवन, एनी मोर क्वेश्चन गाइस? ठीक है, मैं अब यहाँ से सिद्धार्थ सर आगे क्या कहते हैं कि आपसे बात करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे मेल वगैरह कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको उसी में मैं सोल्यूशन दे दूंगा। सिद्धार्थ सर प्लीज टेक ओवर। Hello guys, good evening. Good evening guys. I hope you enjoyed the session today of e-commerce business. I believe ये session आपको अच्छा लगा होगा आज। कुछ नया सीखने को मिला आपको आज के डेट का, राइट? इनफैक्ट ये वेबिनार का जो मेन मकसद यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले ऑनलाइन इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि क्या क्या वेरिएंट्स आ रखे हैं, जिसमें कॉम्पिटिशन्स कहाँ हाई है, कैसे क्या करना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है स्क्रैच ऑनवर्ड से, राइट? सो दिस इज़ अ वेबिनार where we actually teach you how to start your business from very scratch onwards, right? जो हमारे ट्रेनर मिस्टर अमित खरबंदा जो आपको सारी डिटेल्स आज प्रोवाइड कराया गया है, राइट? आई बिलीव वो आपके लिए एक यूजफुल सेशन रहेगा। सो I welcome all the future entrepreneurs, right? And we DIDM will love to help you and give you the best of the best trainings, right? इसके लिए हमने कुछ सरप्राइजेस वगैरह रखे हैं, right? जैसे for the first surprise which I want to share with you, just check my screen once. Just let me see is visible to you now. Is my screen visible, guys? Is my screen visible? Okay. Can you see the offer leads under e-commerce? Guys, hurry up. Action never regret. So we have a special for you guys that we and right. This was the first surprise gift for you from DI. Right. That person needs to once you are with the questions, right? Counselor maybe or explain the detail fees. I hope my voice is audible to you guys. As you have seen on the screen, so it's a early bird campaign which we have launched right away. So whosoever is interested in that master in e-commerce can join us, and there will be flat 20% cashback for early birds. I repeat, there will be flat 20% cashback on the total fees. So let me clear you about the fees of master in e-commerce, that is 24,518 rupees. And guys, जो अर्ली बर्ड्स हैं जो अभी सेम टाइम पे दे आर गोना रजिस्टर, दे कैन कॉन्टैक्ट टू देयर कंसल्टेंट्स, दे विल बी गेटिंग फ्लैट 20% कैशबैक by today itself, guys.
guys, on your chat box, I hope आपने अपना feedback link check किया होगा. I request your feedback is valuable to us, so please fill that feedback form as well. And as we have promised you guys, at the end of the session, we are going to give you a special surprise second gift, that is a complete tutorial, a complete guide on e-commerce business that you will be getting on your registered mail ID just after this session. Yes guys, आप सबको यहाँ एक ई बुक प्रोवाइड होगी DIDM की तरफ से. दैट विल बी अ कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑन ई कॉमर्स बिजनेस. कैसे आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, जो अभी सर ने आपके साथ यहाँ शेयर किया, पूरा प्रोसेस उस ई बुक के अंदर है. एंड वी आर गोइंग टू गिव यू राइट अवे आफ्टर दिस सेशन ऑन योर रजिस्टर्ड मेल ID. सो अगर किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आई रिक्वेस्ट टू फिल दिस फीडबैक फॉर्म आई हैव शेयर्ड ऑन योर चैट बॉक्स गाइज. आई होप आपके चैट बॉक्स पे फीडबैक लिंक आप चेक कर सकते हैं. सेम टाइम पे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन मास्टर इन ई कॉमर्स कोर्स, आई रिक्वेस्ट गाइस, इट्स अ बेस्ट टाइम. You can go ahead and you can mention in the remarks on the feedback column. Our consultants will reach you out shortly, and yes, you will be getting 20% flat cashback. Guys, आप सब feedback form अपना fill कर सकते हैं. Please fill it. If you have any query guys, please let us know. We have shared the feedback form on the chat box. We request to fill it. I repeat about the two surprises. That is, like, first is 20% flat cashback on the early bird of master in e-commerce program. Guys, if you are really interested, आज के इस pandemic time में अगर आप अपने पार्ट टाइम या अपने फुल टाइम को अर्निंग मोड में लेकर आना चाहते हैं, so it's a best time. You can avail it. You can just fill up the feedback form. You can just mention over there if you are interested to join master in e-commerce program. Yes, wait for a second. Let me share you the early bird. Just wait for a second. So guys, I'm gonna share my screen once again. Just wait for a second. As you can see on my screen guys, here the special offer for early birds on master in e-commerce. As you can see on my screen, get 20% off on master in e-commerce program from Delhi Institute of Digital Marketing right away. Guys, it is the best time. आप
मास्टर इन ई कॉमर्स प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं, अपने फीडबैक फॉर्म में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। अब कंसल्टेंट्स विल रीच यू आउट, आप अपने कंसल्टेंट्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आई होप गाइज आज का सेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहा होगा, एंड आई एम टेलिंग यू द बेस्ट पार्ट इज द Q&A राउंड। क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड से पता चलता है ऑडियंस ने कितना अच्छे से इस सेशन को, नॉलेज को गेन किया है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट गाइज। आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हमारे एक्सपर्ट से, दैट इज समथिंग यू हैव डेडिकेटेडली इन्वेस्टेड योर टाइम, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट गाइज। इट शोज कि आप कितना सीरियस हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आने के लिए। So guys, I again request you to contact to your consultants if you are really interested to join Master in E-commerce program with DIDM, Delhi Institute of Digital Marketing. Same time pe guys, I request you to fill the feedback form on the chat box which I have shared you. You can see here it is. I'm sharing you once again guys. सेम टाइम पे गाइज आई विल रिक्वेस्ट, मैंने आपको चैट बॉक्स पर यहाँ DIDM यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर किया है, सो यू कैन सब्सक्राइब ऑन दैट चैनल। आज के पूरे सेशन का रीटेलीकास्ट आपको थोड़ी ही देर में यूट्यूब चैनल पर शो हो जाएगा, सो यू कैन अगेन गेट द नॉलेज फ्रॉम देयर। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द थिंग्स कि आपको यहाँ पर जो भी नॉलेज गेन हुई है आप उसको रीटेलीकास्ट देख सकते हो, उसका पूरा रीटेलीकास्ट आपको DIDM यूट्यूब चैनल पर शो हो जाएगा गाइज। I'm sharing you the link once again over here. Just a second. आप अपना फीडबैक यहाँ चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं गाइज। आपको आज का पूरा सेशन कैसा लगा? प्लीज ड्रॉप अ सिंगल वर्ड फीडबैक ओवर हियर ऑन द चैट बॉक्स ऑल्सो। आई होप कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं मास्टर इन ई कॉमर्स प्रोग्राम के लिए, सो यू कैन फिल द फॉर्म, यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी विच DIDM is going to give you right away, that is 20% flat cashback on early birds for master in e-commerce program guys. And this is the best part. Second thing, as we have promised you that we are going to give you one complete tutorial as well, so guys don't miss out। आप अपना मेल इनबॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, थोड़ी ही देर में आपके पास एक मेल आ जाएगा जिसमें आपकी कंप्लीट ई बुक होगी रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस। यस गाइस, उसमें कंप्लीट ट्यूटोरियल गाइड है हाउ यू कैन स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच टू द प्रोसेसिंग, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था बिफोर द सेशन, और आज हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अमित खरबंदे ने सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। वी होप कि आपको बेटर समझ में आया होगा आज के इस सेशन में। किसी की कोई फर्दर क्वेरी हो गाइस, यू कैन जस्ट ड्रॉप हियर इन द चैट बॉक्स। आपकी अगर कोई फर्दर क्वेरी है तो प्लीज आप यहाँ बता सकते हैं गाइस।
आई होप गाइस कि आप सबने अपना फीडबैक फॉर्म फिल कर दिया होगा. स्टिल अगर किसी ने अपना फीडबैक फॉर्म फिल नहीं किया है, अगेन आई एम गोइंग टू शेयर यू द फीडबैक फॉर्म लिंक इन द चैट बॉक्स. I request guys, your feedback is valuable to us, so please fill this form. गाइज एक बार मैं अगेन आपको इस पर्टिकुलर ऑफर के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, सो basically we are going to launch master in e-commerce program, and guys, those who are interested in this program can get 20% flat cashback on early birds basically. So guys, hurry up, it's the best time to become your to open your own store on e-commerce platform. आप e-commerce में business कैसे कर सकते हैं, you will get more updates in the ebook as well, जो हमने आपको यहाँ पर अभी मेल करेंगे आपके registered mail ID पर. At the same time, guys, I would like to thank you from the complete DIDM team side that you have joined this session and gained the valuable knowledge from our expert, Mr. Amit Kharbana, on e-commerce business. Again, it's a big thank you from team DIDM side to all of you guys. श्योर मिस्टर सईम, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे थोड़ी देर में आज के पूरे सेशन का रीटेलीकास्ट देख सकते हैं. इसका लिंक आपके पास रिसीव हो जाएगा, आपके मेल आईडी पर आ जाएगा. यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर. थैंक यू निष्ठा फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सईम. गाइस, किसी की अगर कोई फर्दर क्वेरी है, प्लीज आप यहाँ चैट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं. आई एम हियर टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. प्लीज बताइए. Again, I request you guys, yes, if you have any query, please let us know. And again, I request you, अगर आपने feedback form fill नहीं किया है, so please fill it. Your feedback is valuable for us. Please fill the feedback form. And again, I am sharing you the highlights of this session. That is, like, you will be getting two things. First is special offer on early birds on master in e-commerce program from Delhi Institute of Digital Marketing. That is, get 20% flat cashback on the total course fees, that is 24,518 rupees. Moreover guys, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर थोड़ी देर में इस पूरे सेशन से रिलेटेड एक ई बुक आपको प्रोवाइड हो जाएगी. दैट इज द कंप्लीट tutorial on e-commerce business. Yes guys, DIDM is going to give you as a surprise gift as we have promised at the starting of the session. We hope कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर फिर भी कोई फर्दर क्वेरी है, सो आप अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं. इफ यू वांट टू हैव क्वेरीज डायरेक्टली विद आवर एक्सपर्ट मिस्टर अमित, तो आप अपने कंसल्टेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं.
they can get you connected with Mr. Amit as well. गाइज अगर स्टिल किसी की कोई क्वेरी आई रिक्वेस्ट प्लीज चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, बता सकते हैं. All right guys, at the end I would like to again thank you very much from complete team DIDM for joining this session. We are really grateful that आपने आज इस session को join किया. Thank you very much guys. I'm going to close this session. Thanks a lot. Be safe over there.